This is completely out of scope. Scope creep! हाय प्रिया। हाँ मैं, मगर वो सुनो तो, तुमने तो, लेकिन मैं कब से क्या, मैं आकाश के यहाँ। हेलो। So there was a client जिनसे मतलब who is currently doing around $500 million का business, and they said that when we approached them and told them that we would be helping you in setting up your complete digital presence, which currently is negligible because you do hardly 1 or 2 posts in 2 months. Welcome to the high voltage drama of the agency world, where every decision feels like a hammer ready to strike. In this world, you are either the hero fighting for the right strategy, or you are the one holding the hammer over that tough deadline. It's make or break. And just like the biggest Bollywood thrillers, one wrong move could have you facing the consequences. प्रॉब्लम तो हर एजेंसी के साथ है, बस नजरिए की बात है। तारक मेहता ने हमें हंसाया भी, सिखाया भी, और एजेंसी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। ड्रामा, कैरेक्टर्स और हर हफ्ते एक नई कहानी। वी बिच, वी ब्रेनस्टॉर्म, वी बिल्ड रियल स्टोरीज, रियल फाउंडर्स, नो फिल्टर्स। ऑलराइट फाउंडर्स, लेट्स बिच। What we've realized is that we agency people are very different kind of animals, right? So we have, our Mondays are very different from other people's Mondays, and our Saturdays, Sundays are very different from other people's Saturdays, Sundays. So हमारा weekday भी different होता है. So we thought we best that we make it happen on a weekday. So quickly, I'll just ask all of you people to give your introductions, and then we'll get started. So we start with maybe top of the screen. Niladri, you can start with yours. Hello sir, I am Niladri Roy. I am a tech enthusiast working with close to 50 plus brands currently in India and as well as abroad. We work with companies to build their tech presence as well as their branding presence across different social media. We have been working with clientele like Hero MotoCorp, Bharat Forge, Cummins, building their social profiles as well as their tech enablement through our team. Okay, awesome. So Niladri, in your experience, what do you think? Where do you think such big companies, when they know so much about entrepreneurship and business and scaling and all of that, when it comes to social media and branding, where do you think they're making the biggest mistakes, and where they're leaving money on the table? Okay, so when we talk about social media or branding, I feel they get stuck at a point wherein that is not their core expertise area, and they have a team which just knows how to post on social media. They don't know the trends, or they don't probably engage in the trends, and that is where we as social media partners get in and help them take that step of just because we work with the manufacturing industries, we work with other bigger industries wherein social media is not a prime focus area. They feel that social media is just for a presence. सब लोग हैं, इसलिए हम भी सोशल मीडिया पे हैं. अभी भी इतनी बड़ी कंपनीज अभी भी ऐसे सोचती हैं. Yeah, for that matter, Bharat Forge, they don't engage in social. They didn't used to engage in social media, and that is where we came in and we started managing the social handles. We started engaging with their different teams and understanding कि वो लोग क्या कर रहे हैं, and that slowly should come out, right? And that is why, because they want to attract the new generation, candidates also, right? So they feel connected when they are connected on a social platform, right? And that is where 100%. We come as an agency. So we made them realize that this is a very important part of your business line, wherein to scale up you need to do these things which the new
new age, employees would love to have, like connecting on LinkedIn. No, 100%. Because even when we go and pitch to big companies, when they say no, hamara social media, hamara sales, even if they're doing their social media and paid ads and everything, we say that let's catch an angle of you attracting the right talent. नहीं टैलेंट के लिए हमें सोशल मीडिया नहीं है, हमारे पास 14 लोग हैं एचआर संभाल रहे हैं. एग्जैक्टली सर बहुत अच्छी बात है. आपकी जो 14 लोग एचआर संभाल रहे हैं उनसे अगर इंटरव्यू कर सकूं तो मेरे को ये लग रहा है कि पर एवरी सिंगल पर्सन इज टेकिंग एटलीस्ट 6 to 8 इंटरव्यूज टू क्लोज वन पोजीशन. सबके 2 3 राउंड इंटरव्यू होते हैं. So that means it takes about 2 to 3 months to close one person. And if every interview is about 45 minutes, you're spending 8 to 15 hours per person. And these are for your HR, your mid, up to all the way till your mid-level employee, management. So मान लीजिए अगर आपकी HR की सैलरी 1.5 लाख रुपए, आपकी mid-level बंदे की सैलरी थे 3-4 लाख रुपए, आपने उनका भी 2-3 घंटे लगा लो और इनकी भी 2-3 घंटे लगा लो. टोटल एक कैंडिडेट को लेने के लिए सर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए लग रहा है. और आप कितनी हायरिंग करी आपने पिछले साल में? So he says, I hired say maybe 300 people. Okay, so 1.5 lakh rupees divided by 350 people, multiplied by 350 people. So sir, you're spending say anywhere from say whatever the math is 3 to 5 crore rupees only to hire these people in interview stage तक उनको लाने के लिए. अब वो इंटरव्यू कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, remuneration package अभी मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ. But what data is showing is that the kind of people you're looking for are people between 25 and 45, because ये मैंने आपके LinkedIn पे निकाला है. Then you have people 45 to 55, whatever. ये 3 टाइप के आपके demographics है. This demographic is on Facebook and it's looking at these kind of ads. This demographic is looking to work from home, work from Uttarakhand, whatever. And you're also looking at middle management people above the age of 40. They want to work from Goa or work from the hills or whatever. So if you're such a good company and I see that your ad campaigns are doing extremely well for every different, आप मोटरसाइकिल बेचते हो, आपने वाइफ के लिए अलग ऐड बनाया है, हस्बैंड के लिए अलग ऐड बनाया है, मदर के लिए अलग बनाया है, फादर के लिए अलग बनाया है. जो माँ जो डरती है बेटे की कि 5 लाख की मोटरसाइकिल मैं इसको लेके दूंगी कल इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, उसके लिए आपने अलग ऐड बनाया है. kudos to you. But sir, out of the 5 types of demographics of the people that you're hiring, there is no ad. You don't run ads. Person said, what do you mean running ads to hire people? Yes, sir. Actually, the concept of ads is to attract other human beings for your cause. Correct. It's not only for selling. So you can do ads for HR. And also you can, so once you explain the problem in such a big way, then you say, fine, you're spending 10 crores, 20 crores, 30 crores in man-hour time to hire these people. What if I do this demographic segmentation for you? Do this ad profiling for you, and this will be a separate social media exercise, 5 lakh rupees a month. I'll charge you 50 lakhs a year to be able to cut down your few crores ka cost and being able to close the sales cycle from 3 months of hiring to maybe 15 days of hiring. That automatically opens up another segment. So correct. Congratulations, already talking in that language to people. Yeah. Awesome. Deepak, over to you. Hi, my name is Deepak Agarwal. I'm born in Kolkata. I did my CA, but my passion was marketing. So 13 years back, I started a company, 1X Solution. We are into SMS, WhatsApp, email marketing. Our USP is we have built 60 crore data, worked with 5,000 plus clients, and have 300 resellers in India. And I'm on a mission of vocal for local. I have worked for many brands, international. Now I want to support my cause, vocal for local. So working on something called Love Desi to make an impact in the economy. Very good. Thank you, Deepak. But tell me, whatever you said in your hero introduction was about Love Desi, about vocal for local, about what you like to do, about your passion for marketing from a CA. Now tell me how, if I'm a client who's got crore rupee budget to spend, how does your hero introduction tell me what's in it for me? So I mentioned 2-3 things. We do SMS, WhatsApp. I have 60 crore data, and I'm already working for 5,000 plus brands. So if the client so now tell me, yes. So tell me, if I'm a hotelier or I'm a hospital owner, or how do I know how to fit this SMS marketing into my thing? Or can you help me? Can we just redo it, and can you help me fit? Say for example, I'm a hotelier. If I'm a hotel owner, so can you redo your hero introduction to fit me so that I'm like, Deepak,
मुझे आपसे बात करनी है, I have a burning issue. So, if you're a hotelier and I knew about it, I would say that I work for a client like Novotel. We have launched in India, and we have a pan-India HNI data and travelers data, which could be relevant for any hotel brand to attract the customer from day one. Okay, very good. That's a good start. Can you make it even more revenue focused for me? This introduction for Novotel. So we have helped a client for a Kolkata launch where they have spent 30 rupees per campaign and they have generated a 4,000 rupees revenue per customer. So that is kind of value. Very nice. Perfect. See how you're improving at every step. Let's do it one more time. Give me a total. Like, hi, my name is Deepak. I help hotels just like Novotel in Goa. They have 400 rooms. Mostly their occupancy is 60%. Even if their occupancy goes up by 5% every day, that is an additional 30 rooms a day. That's an additional 1,200 rooms a month. That's an additional 4,800 rooms a year. And 4,800 into an average occupancy rate of 6,000, it's some 24 crore rupees. To get those 24 crores and only that 5% extra, 60% they're getting from OTAs, MakeMyTripBooking.com. Rest they're getting from travel agents. Rest they're getting from corporate, from MICE to walk-ins. Great. But I walk in to only get that extra 5%, which also comes down to 24 crores in revenue. For that, I use the 1X messaging system. It's an automated messaging system that I've created with AI, where data of the right HNIs who are moving to all these expensive resorts, they are informed about your weekday, your weekend, your shadi, your mundan, whatever big events are possible in your place. And from there, we track people who are calling you. And even with a 1% conversion rate, we are able to give you a minimum of 200-300 room nights a year. And that totals to say 2.5-3 crores in business. If this message appeals to you and you're a hotelier listening to me, click on the link. Let's get on a call together. So मेरे कहने का मतलब है हमारी जो कहानी है that should eventually relate to the business opportunity that the client has, कि वो आपको एकदम से फोन करे. जब हम उसको सिर्फ एक वनीला इंट्रोडक्शन देते हैं ना कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, अब आपके ऊपर है आप इसको अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में फिट कर लो. तो कहता है कोई किसी का दिमाग इतना नहीं चलता. हमें फिट करके देना है कि कैसे मेरा काम आपकी जिंदगी में कल सुबह रिजल्ट लेके आ सकता. Awesome. Thank you. Yes, Amrit. So for all the people who are watching, it's great that, the first few people who came on this agency series are all, I don't know, somehow we have all X over here. Evonix, 1X and 4Fox. Okay, go for it. Yeah. Sir, my name is Amrit Singh. I have a company named 4Fox Solutions. We are 10 years old. When we started this, we were a tech company. And now we are not just a tech company. We are doing staff augmentations. We are in developing blockchains. We are into developing n number of products for people who are based on AI. Currently we are working on 5 to 7 AI products. So I won't say we are a proper marketing or digital agency. We are a pure tech agency, and we work on all the aspects and each and every, you can say, unturned stone of tech. And till now date, we have worked with B2B agencies and other networks as well, where we have worked on from A to Z all the brands in India, whether it be HDFC, you name it, and we have done it. It's Discovery, TLC, all the brands which should, even a small website or a logo or anything, we have created that for where tech comes in. So coming to the AI part, we are developing few tools for foreign-based agencies where they would be, I am in an NDA, I cannot discuss the idea, but yes, it would be a market boomer when it comes out. Okay, so Amrit, first I'd like to tell you exactly what I told Deepak. Like you said, I do see this is what happens as founders. We get very excited about our message because बच्चा है हमारा कि यार जान मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, and that's what 10 years of experience must have gotten to you. But thing is, the customer will only come to you when he understands in the first 2 minutes what you can do for why he was awake last night. So can you just redo it and tell me based on all the things tech,
आप तो 1000 चीजें कर सकते हो, बट एक ऐसी चीज बताओ जो कस्टमर हु इज लिसनिंग टू दिस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गो लाइव एवरीवेयर, सो इज लिसनिंग टू दिस एंड सेड यार, oh, these guys do this. Okay, so we do websites, we do all kinds of a website that can give you booking engines, website can drive you sales, website can give you n number of services that you want to offer. We create those kinds of websites and portals. We do e-commerce. Very good. So you're definitely gone one step better than पहले आपने कहा I do everything, now instead I do website which can give you sales. Great, every website can give me sales. Now let's refine it a little more. Looking nice, Arjun, welcome. Give me a little bit more. Yeah, we do websites which gives first we decide the wireframe, which gives you minimal clicks, and will take the user journey so smooth that within few clicks or any other agent you can just take the product by. Excellent. Now can I tell you, firstly, the very few people are able to understand this skill. Congratulations for being able to master this skill, but can I tell you, the way you've explained it, you're losing at least 100 clients a year. I promise you that. Absolutely. Because आपकी explanation is not clear at all. Can I help you here? Yeah, absolutely, sir. That's why I'm here. So let's take it. Thank you. Let's take an example. Give me one industry and let's take an example. So you can say hotel booking is one. Okay, hotel booking देते हैं. Here it comes. Almost there. So what I'm trying to say is that I'm not promoting here on this call that you should have micro niches only. But the thing is, on your website, Amrit and Deepak and Arjun, and on your Instagram, people should know मेरी इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने होटल की बात की, सो यू से इफ यू आर अ स्टैंड, पूरी गणित समझानी आप. ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले उसका सबसे हाई टिकट प्रोडक्ट पकड़ो जिस भी इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो. एक होटल में सबसे हाई टिकट प्रोडक्ट कौन सा होता है? Rooms which is there. Banquet. Restaurant. That's it. Banquet में सबसे बड़ी इवेंट कौन सा होता है? Wedding. राइट, वेडिंग. उससे पहले मुंडन वगैरह, किटी पार्टी सब होते हैं, बट आपने वेडिंग पकड़ा. एक वेडिंग कितने की होगी? मिनिमम 20 लाख. 10-20 लाख में कौन सी शादियां हो रही है? इंडिया में रह रहे हैं हम यार. नहीं, बैंक्वेट के तो खर्चे 20 लाख की. 20 लाख में शादी अभी बुक करा दो, मेरे बच्चे बड़े होने वाले हैं. Anyway, चलो लेट्स टेक इट एट 20 लाख रुपीस. मेरे हिसाब से करोड़ रुपए से कम, बिकॉज वी वर्क विद सो मेनी होटल्स, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की शादियां हो रही है. 10,000 रुपए, 8,000 रुपए पर प्लेट है. 1000 गेस्ट हर जगह आते हैं. कुछ भी नहीं हो रहा इससे कम दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, कहीं भी. बट एनी, बिकॉज वी वांट टू वर्क, दीपक, विद पीपल एट दैट लेवल. आप करोड़ रुपए का टिकट साइज पकड़ के चलो, ठीक है? करोड़ रुपए की शादी हो रही है, हर जगह हो रही है करोड़ की शादी. मैं आपको मिनिमम बता, बैंक्वेट में करोड़ रुपए की शादी हो रही है. सो यू से एक महीने में उसकी 30 दिन होते हैं. 30 दिन में कितनी शादियां होती है? से उसकी 20 शादियां होती है, क्योंकि कभी डेट्स ओवरलैप, साया वाया, ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो यू, और पूरे साल में मान लीजिए 6 महीने अच्छा सीजन चलता है, तो 200 दिन उसकी अच्छी शादियां चल रही है ना. अगर एक शादी 1 करोड़ रुपए की, और आपको रिवर्स इंजीनियर करना है कि मान ली, हाउ मच रिटेनर डू यू वांट फ्रॉम दिस गाय? At least 3 to 5 lakh rupees. 3 to 5 lakh rupees a month? Yeah. Okay, so that means my formula is always give a person 10x, so you have to give him 50 lakhs a month. Absolutely. That means 6 crores a year. And 6 crores a year लाने के लिए आपको उसको कितनी शादियां देनी? 20 लाख के हिसाब से देखा तो ना 1 करोड़ के हिसाब से 6 शादियां. 6 शादियां देनी आपने, राइट? बट 6 शादियां अपने एलीट क्राउड की देनी है, बड़े 1 करोड़ रुपए जो खर्चते हैं मैरियट में इधर उधर की. तो 1 करोड़ की 6 शादी लाने के लिए how many leads do you think that you need to get to this person so he can close 6 shadis? Nearly 100 or something leads. 50x. Right, so let's, हाँ जी, 50x. 50x, ठीक है, 50x दे दो, तो मतलब 300 लीड ला के, ठीक है? तो तब जाके होगा. गुड, सो लेट्स मेक इट डिफिकल्ट, सो दैट उसके लिए भी रिलेटेबल होगा. हाँ जी, 50x तो 300 लीड लानी है आपने. अच्छा, अब यहां तक डिटरमिन हो गया. नाउ दिस 300 लीड्स इज कमिंग फ्रॉम हु आर द पीपल डिसीजन मेकर्स? कोई मारवाड़ी होंगे, कोई नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ दिल्ली के पंजाबी होंगे. पीपल हु स्पेंड मनी, राइट? देयर आर some demographics in our country who spend a lot of money on शादी. lot of people साउथ इंडिया वगैरह में होने के बाद भी वो गोल्ड शॉल पे शायद ज्यादा बिलीव करते हैं, शोशा कम करते हैं. तो we are going after who are our people? The father of the bride, the mother of the bride, the नानी, दादी, जो भी हमारे पास डेटा है, who are these people? Maybe Malwadis, maybe Punjabis, 2-3 nationalities, 200 demographics पकड़े.
और 2-3 हमने उनका टाइप ऑफ पीपल इन द फैमिली पकड़ा, ठीक है। बैंक्वेट हॉल का नाम है मान लो पायल बैंक्वेट हॉल फॉर एग्जाम्पल, एंड यू से अब पायल बैंक्वेट हॉल का एक ऐड बनेगा दादी के लिए, एक नानी के लिए, एक एनआरआई कजन जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए, और एक फादर के लिए कि व्हाई इट्स बेटर देन अदर्स एंड ऑल ऑफ दैट, सेंट्रली लोकेटेड है, गेस्ट की परेशानी नहीं होती, बाहर से लोग आएंगे यही रह लेंगे व्हाटएवर। सो ये हमारा बिजनेस मॉडल। अब हम इसको रिवर्स इंजीनियर कैसे करें? अब आपकी वापस हीरो पोजीशनिंग पे आ जाते हैं। हाय, माय नेम इज अमृत। इफ यू आर रनिंग अ बैंक्वेट, you are getting average 3 queries a day, 90 a month, out of which after every 2 to 3 months you're closing one big deal and about one small deal. When I see the heat map data of most websites, either the queries are not replied on time, or there are automated jawabs happening, SIA dates are not available, or personalized responses are not available, and most of the queries people say are coming in junk. What we do at 4Fox Solution is to be able to create 4 different types of targeted ads for 4 different types of demographics, so that only targeted ads are coming in, and when they fill up the form, they say our minimum cost for one wedding for 500 people plus is at least 1 crore. If your budget is less, please don't fill up the form. We get you targeted leads of people who have the money. We do the first round of calling the client to understand if this client has the money. And then we pass on the lead to you. With our system, you're able to close 0.5% extra, only 0.5% extra per month, which means you're able to close about 1.5 deals out of the 300 that you get every month. And one शादी is 1 crore, so 1.5 crore rupees per month का मैं आपको business generate करके देता हूँ। साल का 16 crore रुपए, 17 crore। If this appeals to you, click on the link, book a call with me, and I'll tell you how to grow your banquet business, because I think you're losing about 1 crore rupees business per month. Understood. Now, this is a better introduction for a client rather than saying, मेरी website आपके लिए ये कर सकती है, we can do everything in tech. See, दीपक ने भी everything में ये भी what we are saying is, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मेरे साथ कॉल बुक कर, मैं पहले तेरी प्रॉब्लम समझूंगा, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा। इतना टाइम किसी के पास nobody has that. If you confuse, you lose. If you clarify, you win. That's the mantra of running an agency. If you confuse, you can't confuse the person. You have to completely tell them exactly. Okay. So does that help? Absolutely. Absolutely. Yes. Okay. So yeah, Arjun, would you like to introduce yourself and tell everybody about you? Yes, sir. So hi everyone, my name is Arjun Uppal. I'm the founder and CEO of Global Now Productions. We are based out of Delhi and Mumbai. We are an advertising marketing company, and we basically cater to 360-degree of digital marketing services, and we also have an in-house production team. So when we say we look after the advertising part, we look after from the scratch of the pre-production to production to post-production of an advertisement. And we've already lost a 1 crore rupee client, which is gaya. Right. Because your answer is becoming so generic. We do production, we do this, we are 360. What is 360? So it's like social media management, performance marketing. How do you know that that person knows? Because हम marketers ना, हम marketers की language में client से भी बात करने लग जाते हैं. You know, SEO, PPC, you know, off page, यार ये हमारी आपस में बात करने की भाषा है ये. क्लाइंट के साथ ये बातें नहीं करनी होती. ये क्लाइंट के साथ बात हो. इट्स लाइक ए डॉक्टर. सोचो हम लोग चारों डॉक्टर होते हैं और हम आपस में बात करने लग जाते हैं. यार ये तेरा लैटिसिमस डोर्सा है ना, ये ऊपर से हैंग हो रहा है, which is called the lats. Yes. Yeah. But you don't. If you say latissimus dorsi, you'll be like, you know. तो ये सब बातें नहीं हम करते. हम ये वाली लैंग्वेज हटा दो, बात उससे करो बिल्कुल देसी खरीद हिंदी पैसे वाली. You will be the best digital marketer in the country. Most जो भी आपकी माइक्रो नीश है, मैं ये आपकी पेन पॉइंट है. पहले तो पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करके एम्पलीफाई करो. Right. और फिर बताओ कि मैं उसको सॉल्व कैसे करता हूँ और उसकी वजह से कितने पैसे आपके बनते हैं. खत्म. वो आपसे कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग आप करते हो नहीं करते. ही विल नॉट केयर. अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताओ. आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू पीपल. आई स्टार्ट विद निरादरी कि व्हाट इज द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन दैट यू फील व्हेन अ क्लाइंट सब कुछ समझाने के बाद जब वो आपकी बात नहीं समझता.
Is it the owner or is it the owner's manager or is it both? मतलब हम तो आपस में agency people are, we are sort of bitching aloud. हमने अपनी गलती तो निकाल ली कि हमारी पोजीशनिंग वीक होती है, बट अब जरा ये भी देखिए कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. Okay, so सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि they don't want to identify the problems. मतलब उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है. उनको लगता है कि everything is running fine. मतलब क्या एडिशनल तुम क्या कर लोगे, मतलब एंड मोरओवर 4 फुट 2 इंच बातें बहुत करता है तू. When they look at a younger agency, they feel कि इसको क्या आता होगा, मतलब we are already a multi-billion-dollar company, and when somebody like us with I have an experience of around 17 plus years, but my agency is around 10 years old. So they feel कि 10 साल का agency, मतलब how would they work? But when they start working with us, they realize कि नहीं, काफी difference आ रहा है. But the main problem I find is that they don't realize that there is a problem, and that is the most frustrating. कोई ऐसी स्टोरी बताओ, कोई ऐसा मोमेंट बताओ, नाम लेने की जरूरत नहीं है ब्रांड की, कि जब आपको ऐसे लगा कि यही फोन पटक दो इसके ऊपर. Okay, so एक ऐसा okay, so there was a client जिनसे मतलब who is currently doing around $500 million का business. And they said that when we approached them and told them that we would be helping you in setting up your complete digital presence, which currently is negligible because you do hardly 1 or 2 posts in 2 months, and you do not manage your social media well. So they said कि हमारे यहाँ पे we don't need social media. हमारे यहाँ पे कोई भी social media नहीं देखता है. क्या बोला तूने? And हमारा कोई भी employee भी social media पे नहीं है. But then we said कि नहीं, आपके employees हैं, काफ़ी सारे employees जो LinkedIn पे connect करते हैं आपके साथ, but then there is no engagement, there is no response, nothing, कुछ भी नहीं आता. बोला कि नहीं, but हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है because हमारे यहाँ पे कोई भी हमारे clients भी हमें social media पे search नहीं करते. And this is what they say कि हमारे client भी हमें social media पे search नहीं करते, but for that matter we all know कि everybody searches everybody on social media first, right? So this is how the conversation started, and I felt कि मतलब और क्या समझाऊं इसको मैं कि this person will understand that there actually is a need in the industry. ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उनका जो कंपटीशन है ना, उनका सबसे बड़ा कंपटीशन. I did the same thing. उसका LinkedIn पेज खोल के दिखाओ कि आपकी कंपनी के कितने एम्प्लॉइज इनको फॉलो कर रहे हैं और कल को यही जॉब लेने वाले. I did the same thing कि आप ही के कॉम्पिटिटर्स में आप एंगेजमेंट देखिए और आप ही के एम्प्लॉइज ने उस पर लाइक किया हुआ है. Then why would not they like on your page जब आप कुछ पोस्ट कर रहे हो? So that is how that conversation changed, and we could close the deal. But anyways, but this is the same with every other founder. At least the bigger companies, small startups, they understand this, but bigger organizations, it's difficult. Yeah, no, very good. Anything else, Supriya? Would you like to introduce yourself? And we're talking about, this section of the communication is called bitching aloud. We're all bitching about our agency clients. So you please introduce yourself and then let's get to something. My name is Supriya, and I have an agency in the name of CCM, wherein we provide ATL and BTL marketing services and solutions to our clients. We have an expertise in the automobile industry, as we have been serving them in the rural as well as in the urban locations for over past 20 years now. Very nice. What do you do for them? We provide all kinds of ATL and BTL solutions, which include all kinds of media releases, media planning, and outdoor holdings, events that they have, small scale corporate events and activations that we do. उसके बाद उससे क्या होता है? उससे क्या होता है as in? मतलब what benefit does the client get after you do this? So they are able to reach a wider audience. They are able to tap on to their competitor audiences and make sales to them. तो approximately अगर ये करने से और ना करने के बीच में दोनों में कोई sales का number आप बता सकते हो? How much? So yeah, this I might not be able to share because the companies that we are working majorly with. Just give me a hypothetical situation. कुछ लोग करते हैं और ATL, BTL और कुछ लोग नहीं करते. जिन्होंने किया वर्सेस किया, कितना फर्क आया पैसे में? पैसे में like in their revenue. So अगर revenue wise अगर बात करें तो उनका ईस्ट का या नॉर्थ का जहाँ का भी हम लोग काम करें उनका मार्केट शेयर ऊपर जाता है. They are able to get better sales in their zonal divisions where we work with compared to their other regional counterparts. Okay, so approximately जैसे if I am working with say suppose Hero Motocorp, which I think Niladri also works with,
they have their biggest सपोज एक प्रोडक्ट है ग्लैमर की मार्केट शेयर यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई है ईस्ट इंडिया में अगर देखा जाए तो. एज आई एम फ्रॉम कोलकाता, वी आर हेडक्वार्टर्ड हियर बट वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट corporate offices in other locations in India. Achha. Okay. No, but approximately, if you see what I'm trying to say, what I'm trying to get at is because when that if we show a number, a hypothetical number, a tentative approximation, then our story becomes even more engaging for people to say, because I know this happens, but I'll tell you why I don't have the numbers is because I am not working as a central agency for the client. I am maybe working as one of the agencies in the East Division. So maybe one client is getting done, then media releases by us, and maybe some of the other part of marketing is with some other client or other agency. So even they don't get the full market data from their own company. No, हम सिर्फ hypothetical बात कर रहे हैं. Hypothetical क्योंकि आप इस business में हो तो you believe that there is an ROI to the client. तभी वो मेरे को charge करते हैं. So that. Okay. So any funny or irritating or frustrating stories without naming the client? Without naming the client, it's funny because when I was new in this business, like एक साल होने के बाद there was a moment wherein I got a call from a client and he said कि मुझे आज के पेपर में ad चाहिए. आज जो दिन शुरू हो गया था. Yeah. Very good. Because ये अगर आप they had missed the deadline. मेरे पास भी आपके लिए कुछ clients हैं. But आज की पेपर में क्या ऑनलाइन ऐड चल सकता है? क्यों चलते पेपर का आज TOI में डाल दो? No. TOI के ऐप पे आ जाएगा, but न्यूज़पेपर में नहीं होगा. तो आपने उसके जवाब कैसे दिया? You just put the phone down. No, I just laughed it off and said कि नहीं सर कल करते हैं ना अपने. मैं क्यों business lose करूँ? Good, that's a smart thing to do. Good. Okay, what Arjun, any crazy, frustrating, funny stories? So I just went to one of my friends and he called me up कि I'm looking out for a social media agency and मुझे पता है तू social media करता है तो तू आ जा मेरे ऑफिस आ जा. तो मैं उसके ऑफिस गया and after some time सारी बातें हो गई and he was like कि सब ठीक है अब तू मुझे बता प्राइसिंग पे क्या करना है. So I said कि the whole 360-degree package that we'll cater to will start from 2.5-3 lakh rupees, right? And he was like 2.5-3 lakh rupees. कह रहे मेरे पास तो 15-20 हज़ार रुपये के कोट आए हुए हैं. एंड आई वाज लाइक तो 15-20 हज़ार रुपये के कोट में और मेरे कोट में इसलिए फ़र्क है ना क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं आपको कितने लोग दे रहा हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ इसके अंदर एंड उसके अंदर वो आपको टाइम भी देंगे कि नहीं देंगे मैटर करता है. बिकॉज जो 15-20 हज़ार रुपये वाली मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं वो एक ही सोशल मीडिया मैनेजर पे 10-10, 12-12, 15-15 क्लाइंट्स डाल देती हैं. दे हैव अ रिटेनर. नहीं यार फिर भी मैक्सिमम 50,000 रुपये का कोट आया हुआ है, तेरा 2.5-3 लाख रुपये का कोट कैसे है? एंड हम मतलब 1 घंटे तक सिर्फ इसी पे बात करते रहे और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया. मैंने कहा भाई तेरे को कराना है तू करा, नहीं कराना मत करा. उसी टाइम ना एक काम करो, ऑफिस में 2-3 लोगों को बोल दिया करो मैसेज करके व्हाट्सएप पे कि जब मैं नंबर 1 दबाऊंगा ना तो एकदम मुझे वापस फोन करके बोलना सर अर्जेंट है आपको ऑफिस आना पड़ेगा. कोई या घर से आपको फोन कर दे वहां से भाग के निकल. तो ऐसे 2-3 हैक्स बना के रखो सीरियसली. 1 घंटा जो आपने पे लगाया ना जो फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो बचा सकते थे आप. बिल्कुल. एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड. आई वाज लाइक कि आपको पहले भी मतलब उनको पहले मैंने आइडिया दिया था कि स्टार्टिंग प्राइस कितने से स्टार्ट हो जाएगी. स्टिल ही कॉल्ड मी एंड मैं चलो कॉन्ट्रैक्ट भी किया और दोस्त भी किया है ना. हाँ मतलब कल एक्चुअली ऐसे दोस्त होने भी नहीं चाहिए. हाँ सॉरी मतलब इंटरव्यू कर रहा हूँ. कल एक्चुअली कल का इंसिडेंट है, yesterday's incident wherein I went to a client and told them कि they call us for SEO services and website development and all, and बात अटकी है SEO पे ना कि SEO पे तुम लोग क्या करते हो. I said कि SEO is a long term process, so it will take time. You have to be patient about SEO because keyword optimization रहता है. बोला ठीक है. तो somebody from the senior team came in and he sat down and said कि क्या करते हो SEO में. तो I said कि हम पहले keyword planning करते हैं. कैसे करते हैं? मैं बोला ठीक है मतलब देयर आर रिसर्च टूल्स, कीवर्ड रिसर्च टूल्स एंड ऑल. कहाँ पे करता हूँ? मैंने ओपन किया. मैंने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनको बताने में कि मैंने कहाँ पे किया. तो मैंने बताया ये कीवर्ड रिसर्च टूल है, इसमें करोगे तो मुश्किल है, मुझे पैसा क्यों चार्ज कर रहे हो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ. तो मैंने उसके बाद क्या करोगे? मैं बोला उसके बाद उसको हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं. नहीं ये तो मैं मेरे टीम पे कर सकता, तुम क्या करोगे?
मैंने बोला सर यही जो आपको मैं समझा रहा हूँ ये मेरा नॉलेज है जो मतलब हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं if you have us as a team. So and this conversation was not ending. He said on everything that this I can also do, and that is really frustrating. जब एक point पे they realize that they can do everything but they don't do anything. So that is the most frustrating. एक फैंटम वाली मीम आई थी ना जो अपने आप उसको मेंटली थप्पड़ लगा रहे थे लेकिन आगे से स्माइल कर रहे थे, दिखा नहीं पा रहे थे. तो I tell you, I promise you, many years ago मैं कर दिया था. मुझे समझ आया कि दो टाइप के लोग होते हैं, तीन टाइप के लोग होते हैं. एक ओनर होता है, एक ओनर का बेटा या उसका रिश्तेदार होता है और एक उनका मैनेजर होता है. तीनों से डील करने के अलग अलग तरीके. ठीक है, ओनर से बात करनी है तो सिर्फ पैसे की बात करो, मैनेजर की बात करनी है तो उसकी प्रमोशन की बात करो कि पिछली बार जब मैंने किस क्लाइंट के साथ काम किया था ना ऐसे करने के बाद उनकी भी ये प्रमोशन हो गई थी, उनका तो आई यूर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लेवल, राइट. सो आपका जो टारगेट है उसकी टारगेट्स की बात करो. और ये जो नीचे वाला जो बंदा आता है ना जो ये सब बातें करने आता है कि मेरे को कीवर्ड टूल्स वगैरह पता है, तो आप उसको बोलो यू आर एब्सोल्युटली राइट. कहां से किया है आपने? दिस इज अमेजिंग. ये कीवर्ड टूल सर किसी तरह आपके पास आधे घंटे का प्लीज किसी टॉक देने आना सर मेरे ऑफिस में, बिकॉज जो ऐसी होगी नॉर्मली क्लाइंट्स को ये बातें पता ही नहीं होती जो आपको पता है, जो आप मुझे बता रहे हो. जैसे वो कह रहे थे आपको 1 घंटा बताता गया वो, आप उसको बोलो सर प्लीज वंस वी साइन द डील you have to make a promise with me. You are going to come and give a motivational talk to my team. आप देखना वो 2 मिनट में पलटी खा जाएगा क्योंकि वो अपना वैलिडेशन ही मांग रहा है वो कि मुझे इतना कुछ पता है, क्योंकि या तो उसकी बॉस सुन रही है या वो सुना रहा है, अपनी नौकरी बचा रहा है वो. So best is to include him as I promise you, if you want to win over a client और उसको अपनी तरफ से बैटिंग करानी है ना, उसे चाहे डील मिले या ना मिले उसे अपनी कंपनी में बुला लो फॉर अ टॉक, यस रूम पे बुला लो फॉर अ टॉक और चीफ गेस्ट बना के और सब कुछ करो और फिर देखो क्या होता है. ये सब डिजिटल मार्केटिंग सी ऑल दिस हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग. यस वी टॉक अबाउट पोजीशनिंग, वी टॉक अबाउट जो 3 दिन अर्जुन और हमरे साथ लगाए, वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग. It is positioning, it is marketing, it is pricing. There's a correct way of running a digital marketing agency. There's team management system. But today we're just having a little bit of a fun in this section where we are calling it bitching aloud. What we're saying is कि जो client है ना, 2 टाइप के क्लाइंट है. एक के ऊपर तो आपको फोन रखने का वो होता है, वो तो सीधा जैसे आपका टाइम आपको पता लगे किसी को बोलो नंबर 1 दबाया, आपकी टीम ने फोन किया सर ऑफिस में बहुत बड़ा वो हो गया और आप मेरा 5 करोड़ वाला क्लाइंट है वो आने वाला, सर आई एम सॉरी $1 million क्लाइंट इज कमिंग टू ऑफिस. स्पीकर फोन पे डालो क्योंकि आपको पता है क्या बोलने वाला है. टेल योर टीम, आप बोलो सर 1 सेकंड में कॉल आ रहा है, स्पीकर फोन पे डालो, हेलो अर्जुन सर आप ऑफिस आ रहे हैं, सर वो 1 करोड़ रुपए वाला जो हमारा रिटेलर वाला क्लाइंट है ना वो आ रहा है, और सर आई हैव टू गो, मेरा ना 1 करोड़ हमारे पास 1 करोड़ रुपए रिटेलर वाले क्लाइंट्स है ऑफिस में, और सर वो तो हमारे मिनिमम क्लाइंट्स है, हमारे को उनके लिए जाना पड़ता है. इतनी सी सीडिंग करो, वहां से भाग जाओ, पहली बात. और दूसरी बात, व्हेन इट कम्स टू अदर क्लाइंट्स ऑलवेज, जैसे मैं राउंड टेबल का मैंने आपको बताया था, वी डू राउंड टेबल, कॉल पीपल फॉर पॉडकास्ट. दिस इज टू अंडरस्टैंड देम, मेक अ रिलेशनशिप विद देम एंड ऑल्सो बिल्ड अ रैपो. सो जो ये इरिटेटिंग चीजों में गलती हम भी हो जाते होंगे, इरिटेटिंग जब अपने अपने चीजों में, बट अभी तो हम अपने क्लाइंट्स की बात करते हैं. जब क्लाइंट इरिटेटिंग हो जाता है ना और वो अपनी ही बात कर रहा होता है, स्पेशली अगर उसका बॉस सामने खड़ा है, बॉस उसको सिर्फ नंबर कमाने बेचारे, उस टाइम नंबर दे दो उसको, उस टाइम अपने आप को डिफेंड मत करो. ग्रेट स्टोरी निलाद्री. एनीबडी एल्स हैज सच अ स्टोरी? So, not a story, sir, but just wanted to say something. So the last time I did a 3-day course with you, after that I implemented some of the changes in my company, and after that changed, I created a little bit of a funnel. जो भी लीड आ रही थी उससे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एंड हमने इनिशियली में ही लोगों को पूछना शुरू कर दिया टैट डू यू हैव दिस मच बजट, डू यू हैव दिस मच बजट. जो रिप्लाई कर रहा था उसका वो हमें समझ आ रहा था कि उसका बजट है, एंड उसी के साथ हम आगे कन्वर्सेशंस प्रोसीड कर रहे थे और उन्हीं के साथ हम आगे अपनी सारी डीलिंग कर रहे थे या बातें करनी शुरू कर रहे थे, एंड हम सब कुछ कर रहे थे सो दैट हम अपने लीड जेन को भी हम इतना क्लटर्ड नहीं रख रहे थे. वी वर फिल्टरिंग आउट पीपल फ्रॉम दैट, एंड इनिशियली जब मेरे पास तक कोई लीड आ रही थी, द पीपल वर सो इंटरेस्टेड टू मीट मी दैट नाउ व्हाट इज ही अबाउट टू से कि मेरे को ये he'll correlate to my problems and he'll fix those problems. So firstly I did all those changes after that 3-day course of us, and I'm so happy to hear that. Better quality leads now because of it. Boss, better quality lead नहीं, I'll tell you guys one thing. Lead यही तो है leads. Lead is ये junk leads. How is it junk and lead together?
मतलब how can a junk be a lead? It doesn't make sense. सिर्फ इंडिया में हमारे पास एक्चुअली you know what, this is the difference I've seen between India and America. हमारे पास टाइम ज्यादा होता है, घर पे नौकर चाकर है, ड्राइवर है, सब कुछ है, हमारे पास ज्यादा टाइम होता है. अमेरिका, कनाडा वगैरह में हर आदमी टाइम को ज्यादा वैल्यू करता है. हम सबसे बात कर रहे थे, लीड भरी है ना, बात करो. क्यों करो भाई? क्योंकि आपका एम्प्लॉय जो कॉल करने वाला है वो सस्ते में मिल जाता है इंडिया में, इसीलिए. बाहर कोई करेगा ही नहीं, वो करेगा ही नहीं, बोलेगा भाई पर आवर पैसे दे रहा हूँ उस बंदे को यार, नो वे. बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी. हमारी ब्रेन पावर, हमारा सबसे जरूरी चीज जो एक फाउंडर के पास होता है वो उसका आत्मविश्वास होता है, उसका कॉन्फिडेंस. उसको तो छक्के मार रहा होता है, धज्जियां उड़ा देता है उसकी. कौन? ये जंक लीड. तो हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने बचा के रखना है. वो हमारी सबसे प्रेशियस चीज है इस दुनिया में, कि मैं कर सकता हूँ. 5 कॉल आ गए, जिस बंदे ने बोला मेरा बजट नहीं है, हमारी जो वर्ल्ड की हो ना मार्केट का, वो ये हो जाता है मार्केट में पैसे नहीं. अच्छा, ये सेल्स टीम्स के साथ भी होता है. सेल्स टीम भी बोलती है सर मार्केट में पैसे नहीं, सर अभी तो दिवाली चल रही है, किसी के पास पैसे नहीं. 5 गलत लोगों से उन्होंने बात कर दी. हमारा काम है कि उनकी लीड्स भी गलत ना आए. लेकिन कितनी जल्दी लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं ये सोच के कि यही दुनिया है पूरी. वो तभी वो अबंडेंस माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन की क्लासेस करने लोग जाते हैं, देखने के भाई मेरे को कुछ, मैं मानूंगा कुछ और बड़े क्लाइंट है तो बड़े क्लाइंट दिखेंगे, क्योंकि हैं बड़े क्लाइंट. वही वाली बात है ना कि अगर जो वाली गाड़ी दिखती है, लाल गाड़ी ढूंढनी है तो कल आपको लाल गाड़ी दिख जाएगी. सो मैनिफेस्टेशन वगैरह जो आजकल आई थिंक इस वजह से चल रही है, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू सी बियॉन्ड देयर ओन रियलिटी. तो ये बहुत अच्छा किया आपने अर्जुन. लीड, यू हैव टू रिवर्स इंजीनियर. इतनी गट्स होनी चाहिए. पहली बात तो फाउंडर बनने के लिए गट्स चाहिए, वो हम लोगों ने ले दी. नंबर 2, हमारे पास ये गट्स होनी चाहिए ये बोलने की कि मेरे को साल के 1 करोड़ कमाने. फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ पोस्ट टैक्स. मान लो आप कहते हो मुझे 3 करोड़ कमाऊंगा तो 1 करोड़ बचे. 3 करोड़ बनाने के लिए महीने के मान लो आपको 25 लाख कमाने. 25 लाख फॉर एग्जाम्पल, 25 लाख रुपए कमाने के लिए आप बोलो मैं 10 क्लाइंट से ज्यादा नहीं हैंडल कर सकता, मैं पागल हो जाऊं. क्योंकि हम पागल हो चुके हैं सारे. अब हमको रिवर्स इंजीनियर डिजाइनिंग योर ओन न्यू एजेंसी लाइफ इन 2026 करना है. मैं 10 क्लाइंट लूंगा 2.5 लाख रुपए. 10 क्लाइंट पूरे साल में. 10 क्लाइंट लाने के लिए मेरे को 50 से बात करनी पड़ेगी. 100 मान लो 10% रेशियो में 100 क्लाइंट, मतलब महीने के 3-4 क्लाइंट से बात करनी. अब वो 3-4 क्लाइंट महीने के इतने क्यूरेटेड आने चाहिए, इतने प्यारे वो क्लाइंट आने चाहिए जिनकी पेन पॉइंट, जिसका कस्टमर एविटार, जिसके पैसे सब मेरे हिसाब से. फिर पूरा 2026 लगाओ और आराम से 25 लाख रुपए की, 50 लाख जो भी नंबर है उस हिसाब से अपनी एजेंसी चलाओ. द थिंग इज कि हम आज के कैश फ्लो के चक्कर में उसी में फंसे रहते यार. अगर मैं अभी कह रहा है कि वो करो, उसके लिए जो मेरा एग्जिस्टिंग खर्चा है ये रुक जाएगा, इसको करने के लिए इसी में घुसते रहते. फिर क्या होता है, आई मीट सो मेनी एजेंसी फाउंडर्स अगर आपकी ग्रोथ नहीं होती ना तो आप अपनी टीम की ग्रोथ नहीं दे पाते. हर साल टीम छोड़ के दूसरी अच्छी से अच्छी बेचारे अच्छे टीम मेंबर इतनी मुश्किल से मिलते हैं. आपने ट्रेन करे, आपने उनको कोर्स, वो दूसरी एजेंसीज में चले जाते. 3 साल बाद वो अपनी एजेंसीज खोलते हैं और उनकी ग्रोथ आप और उनकी गाड़ियां और आपकी गाड़ी वो सबसे बेटर होने लग जाती. यार ये बंदा तो मेरे साथ काम करता था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. वो निडर था और हम निकल नहीं पाए. Any other stories? This is getting very interesting. सर कुछ लोगों को लगता है कि मुझे टेक आता है और कुछ लोगों को आता है, और जिनको लगता है मुझे टेक आता है सर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लोग होते हैं. वेरी नाइस. ये तो आपने बड़ी अच्छी एड की हुकलाइन दे दी. आपका एड ऐसे ही होना चाहिए. कुछ लोगों को लगता है उन्हें टेक आता है और कुछ लोगों को जिनको नहीं लगता है वो मेरे क्लाइंट्स हैं. अगर आपके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, वेरी नाइस सर. क्योंकि आप इनके साथ कॉल पे जाते क्यों हो? आपको पहले किसी कोई तरीका निकाल लो, जैसे अर्जुन ने निकाला उनको फिल्टर करने का. सर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं वो रेफरेंस देते हैं कि अमृत इनका काम है, यू डू दिस. एंड इन टेक बिजनेस, एजेंसी बिजनेस सर एक अलग मॉडल पे चलता है. टेक बिजनेस में ये है, हमको मालूम है ये आने ही वाला है और इसका ये काम है. लीड आने से पहले हमारे पास उसका इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि रेफरेंस वाला अगर लीड है तो हमारे पास पहले ही इन्फॉर्मेशन होता है उसको चाहिए क्या. नाउ व्हाट ही डज इज, अच्छा ये है डिजाइन बन गया, हाँ बन गया, ठीक है दे दो अभी फिर मेरे को वेबसाइट या तो पोर्टल बना दो. उनको लगता है कि डिजाइन बन गया तो ये रेडी है प्रोडक्ट, अब तो करना ही क्या है, इसको बना दो. तो ये प्रॉब्लम्स है सर हमारे इसमें कि दे डोंट अंडरस्टैंड द टाइम एफर्ट. नहीं पता है क्या, मैं ज्यादातर मजाक में ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जो ज्यादा पैसे नहीं दे रहा, वो अपने फ्रेंड को रेफर करता है, तो ये वाली बात होगी, गरीब आदमी गरीब क्लाइंट से रेकमेंड करा. एब्सोल्युटली.
क्योंकि रिकमेंडेशंस को भूल जाओ, रिकमेंडेशन ने रेफरेंस को भूल जाओ, कभी मत लो। वैसे भी कहते हैं फ्रेंड्स और फैमिली में काम नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर आपके क्लाइंट हाई टिकट नहीं है सर, हम उनके रेफरल से क्यों बात करें? सर आप ही की जैसा होगा, सॉरी मैं नहीं कर सकता। तो यही गलती किया है आज तक हम लोग ने कि जो रेफरल बिजनेस था वो बहुत आता है हमारे पास में, एंड वो लोग ऐसे ही है कि रेफरल बिजनेस दो टाइप का आता है मेरे हिसाब से। एक आता है यार दीज आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, महंगे हैं लेकिन अच्छे हैं, और एक ये है कि फिक्र मत कर बहुत सस्ता है मैं बात कर रहा हूं। तो सस्ते वाली अगर आप कैटेगरी में आ रहे हो तो दिन फॉरगेट इट। दो तरीके के हैं सर, उनको ऐसा लगता है कि जल्दी बना कर देंगे भले पैसे लेते हैं, एंड इम्पॉसिबल चाहिए तो इनके पास चले जाए, ये लोग कर देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुप्रिया, अर्जुन, आप लोग सब इसके बारे में मुझे फीडबैक देना, आपका क्या चल रहा है। यू पीपल आर मच यंगर एंड रोज आप नया कुछ देख रहे हो, मैं भी आपसे, वी ऑल लर्न फ्रॉम द इकोसिस्टम। मुझे आप एक बात बताओ कि मेरे हिसाब से इस आपका इसके बारे में क्या राय है? मेरे हिसाब से फॉर्मूला क्या है? 5 लाख रुपए का रिटेनर लेना, इसका मतलब ये, और आप मान लीजिए आपने पूरे साल 100 क्लाइंट से बात की, ठीक है, और आप कहते हो कि मेरे को 5 लाख का रिटेनर चाहिए, अर्जुन कहता है मुझे 2.5 लाख का चाहिए, अमृत कहता है मैं 1 में भी खुश हूँ, जो भी हम सबका अपना टारगेट है। अगर अमृत को 1 लाख का रिटेनर चाहिए, हमने सबने 100 क्लाइंट से बात करी, मे बी अमृत को हर 5, 7, 10 क्लाइंट के बाद 1 मिल जाएगा। निरादरी को 2.5 लाख का रिटेनर चाहिए, मे बी उसको 25 नो सहने पड़े। सुप्रिया को 10 से 15 लाख रुपए महीने का रिटेनर चाहिए, तो मे बी सुप्रिया को 50 कॉल्स के बाद, 50 मीन्स 50 का एक होगा, फिर सेकंड राउंड होगा, प्रपोजल होगा, मतलब जिगरा जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको सबसे ज्यादा रिजेक्शन को झेलता हुआ अपने प्रपोजल बेटर करता रहेगा और इंडस्ट्री को समझता रहेगा। एंड में उसको 50 लाख की डील मिल जाएगी, तो उसको 4-5 ही डील चाहिए 2 करोड़ रुपए बनाने के लिए, वर्सेस एंजाइटी, सेल्फ डाउट, कैश फ्लो, सेल्फ वर्थ, अपनी अंदर की स्टोरीज ले यार जो आ रहा है। सो डू यू थिंक दिस इनर गेम, बिकॉज मेरे हिसाब से आउटर गेम चाहे कुछ भी बदल जाए, इनर गेम तो एंटरप्रेन्योर की यही रहती है। तो जिस आदमी में इतनी क्षमता है कि नहीं सर काम तो मैं 50 लाख नहीं करूंगा, मे बी आप, मैं गलत क्लाइंट ले आया हूँ, अपनी लीड जनरेशन बेटर करूंगा, अपना एड्स बेटर करूंगा, मना मे बी उसमें 1 महीना लगे, मे बी 2 लगे, मे बी 3 लगे, एक और महीना नॉन सक्सेसफुल, एक और महीना नॉन सक्सेसफुल, सबकी दिवाली पे अच्छी चल रही है, मेरी दिवाली अच्छी नहीं चल रही, कोई बात नहीं, मेरे को यही करना है। डू यू थिंक दिस मेक्स सेंस? Of course this makes sense. Because we also have a limited bandwidth कि हम लोग कितने चीजों में दिमाग लगा सकते हैं या कितना हम लोग आउटपुट दे सकते हैं। If we do the same output for a small ticket client who does not even value your work or anything that you do, it's like we are setting ourselves up for failure then. 100%. So, but why do you think this is still happening? Like everybody I speak to, very few people are able to do this. What do you think is the reason? I think lack of patience, especially in my generation. We want money and we want it fast. हाँ, very nice point आपने जो बोला, पर lack of patience कहाँ से आता है? मतलब मुझे जल्दी से गाड़ी खरीद के सोशल मीडिया पे डालनी है कि मैं सक्सेसफुल हो गया। One more client. Maybe yeah, like that is a major part of it. But still, I think how success is viewed in our generation is quite different from like what used to happen in our parents' generation. Right, बिल्कुल ठीक बोला आपने. So what? But end of the day, I'm just asking. Yeah. End of the day, see, we all, मेरे हिसाब से, every human being is insecure. Every human being has self-doubt. चाहे वो बड़े से बड़ा रॉक स्टार हो, फिल्म स्टार हो, करोड़पति, अरबपति, doesn't matter. And also हम सबके अंदर थोड़ी सी hypocrisy भी है. हम सबके अंदर एक कहनी वर्सेस हम अपने ऑफिस में हम कहते हैं इसको कैक टेस्ट, कहनी और करनी टेस्ट. हम बोलते बहुत कुछ है, करते कम है. Everybody has that, ठीक है. अभी my daughters are 20 and 16. कभी-कभी वो मुझे बोलते हैं पापा आप मुझे ये बोलते हैं, आप कर तो रहे नहीं. तो भी हम सबके अंदर थोड़ा सा फाइन. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, एक लेवल तक, एक उम्र में, एक स्टेज पे हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप से झूठ बोलता है, या कुछ लोग दुनिया से भी झूठ बोलते हैं. बिकॉज दिस इज हाउ एवरी ह्यूमन बीइंग्स. हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, एक्टर्स की करते हैं, हर ह्यूमन बीइंग थोड़ा बहुत करता है, क्योंकि हमें सबको प्यार चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, उस चक्कर में हम बोल देते हैं. बट एक टाइम सबकी लाइफ में आता है जो कहता है यार बस हो गया यार, फेक होना एक बात थी, तो घर पे पैसे ही नहीं आ रहे, ये मैं कब तक ऐसे करता रहूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कैश फ्लो घुमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. व्हेन इज इट दैट द पेन बिकम्स सो बिग दैट द पर्सन स्टार्ट सेइंग वेट, I need to learn more to earn more. What I know is not working. It's not that the market is not working, clients are not good, किस्मत खराब है, किचन ही चल रहा है और all of that. I need to learn more. I don't know how to do business.
When will that realization come? क्या या वो ईगो इतनी बड़ी है कि वो रियलाइजेशन कभी नहीं आएगी? मैं पूछ रहा हूँ। जब तक रियलिटी चेक नहीं मिलेगा। रियलिटी चेक किस हद तक है? मतलब कितना झूठ बोलना पड़ेगा? पैसे खत्म हो जाएंगे तब रियलिटी चेक आ जाएगा। पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर वो बंदा और हार मान जाते हैं कि यार अब तो कुछ भी नहीं करना। तो सर वही तो स्पिरिट है, वहां पे सीखेगा और फिर काम करेगा। राइट, यू राइट। बिकॉज मैंने देखा है अब कनाडा में बहुत सारे लोग एमबीए करने आते हैं, 30, 35, 40 वाले, वो कहते हैं अपने आप को बहुत खींचा, लो क्वालिटी एजुकेशन के साथ जितना जॉब मिलना था मिल गया, अब मेरे को 25-30 लाख रुपए या जो भी $50,000 मैंने बैंक से लोन लिया एमबीए करने के लिए, क्योंकि भाई कुछ करना पड़ेगा। तो जब आपके पास टाइम था, बच्चे नहीं थे, तब क्यों नहीं एमबीए किया? तब धक्का दिया, हो जा रहा था। अब ये समझ आ गया कि भाई खर्चा बढ़ रहा है लेकिन टाइम नहीं है, तो हम जितना डिले करते हैं अपनी लर्निंग, माय थिंग इज, मेरे को ये लगता है कि कोई भी, क्योंकि आई एम फ्रॉम द एजेंसी वर्ल्ड, तो एजेंसी को मैं ज्यादा वो करता हूँ, मुझे लगता है कि सरकार को लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए एजेंसी का ओनर्स को, जब तक वो ये नहीं दिखाएंगे कि हम हर महीने कितनी लर्निंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हम अभी कर रहे हैं। यार एक काम करना, उस क्लाइंट को इस तरह से काम मत कर। एक मतलब एक, मैं यूनियन बाजी नहीं कहना चाहता, एक इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव वर्ड मे बी, बट एक अगर हम लोग सब मिलके बोले कि भाई इंडिया की रिटेलर्स 5 लाख, 1 लाख, 1, 2, 3, और हमारे को ग्रेडिंग मिल जाए बेस्ड ऑन हमने जितनी अच्छी डिलीवरी करी है। सुप्रिया ने अच्छी डिलीवरी करी, वो हीरो मोटरकॉप ने बोला गुड, तो सुप्रिया की रेटिंग इस लेवल पे होगी ना, सुप्रिया कौन की 2 लाख वाली उसमें आ जाए, तो कोई भी सुप्रिया के पास आए उसको 2 लाख देने पड़ेंगे। एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा, तब तो मजा आएगा यार, काम करने में भी मजा आएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने 5, जैसे ट्रिप एडवाइजर और गूगल पे होता है ना, इतने रिव्यू आएंगे तो 1 स्टार और येलो हो जाएगा। वैसा कुछ होना चाहिए कि इतने क्लाइंट्स को अगर मैंने खुश कर दिया, 6-6 महीने उनके साथ अच्छे रिव्यूज आ गए, तो मेरा 1 लाख से 2 लाख मंथली रिव्यू हो जाएगा, फिर 3 लाख हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम बेटर हो जाएगा। एंड देन अ क्लाइंट कम्स टू अ सेंट्रल वेबसाइट, दिस इज समथिंग वी आर वर्किंग ऑन बिहाइंड द सीन, देन क्लाइंट कम्स टू अ सेंट्रल वेबसाइट एंड सीज ऑल द genuinely ranked agencies, उसमें लिखा होगा सुप्रिया, हीरो होंडा, एयरटेल, निराद्री, नोकिया, सैमसंग, इन ब्रांड्स ने इनको रिकमेंडेशन दी हुई है, मेरे को इससे काम कर, और वो उसका रेट लिखा हुआ है। यार freelancer.com वाले अपना $5, $10 लिख के, $20 लिख के अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन हम जैसे मिड लेवल एजेंसी फाउंडर्स 5 लाख रुपए महीना बोलने से डर रहे हैं। Actually, there's also one thing that I have been noticing, that when I had joined the business, the market was rather very heavy on traditional forms of advertising. So even during that point, client stickiness was there. After the heavy introduction of digital platforms and so many number of agencies coming up, client stickiness has reduced quite a lot. Like if I say कि मेरी तो जैसे suppose छोटी agency है, I work with the regional offices of all the corporates. But if I talk about the agencies which is empaneled from their headquarters, even they work like for just 1 year or 1.5 years at max. Very good point you brought up. If the corporate agencies are not performing well, क्योंकि यहाँ पे तो कोई agencies client से भी बड़े हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता क्लाइंट है कि नहीं, पैसे आए काम होगा, पैसे नहीं आए काम नहीं होगा, वो बंद कर देंगे। तो जब क्लाइंट एजेंसी का इतना बड़ा होल्ड होने के बावजूद, इफ दे आर नॉट मे बी इवन बीइंग एबल टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज और गुड नेगोशिएशंस टू द क्लाइंट, तो उनका छोटी एजेंसी पे भरोसा कहाँ से आएगा? Excellent, beautiful question, fantastic question, मैं आपको उसका आंसर दूं। जब तक, और ये मैं बहुत सारे वीडियोस में भी कह चुका हूँ, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट आपने ये बोला, बट अभी तो आपके आगे मुझे टैगलाइन बहुत अच्छी लगी, कुछ तो एजेंसी भी क्लाइंट से बड़ी होती है, सो वेरी नाइस। व्हाट आई एम सेइंग इज, अंटिल सी, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, आपने क्या बोला, स्टिकीनेस, ठीक है, मैं उसको और देसी वर्ड कह रहा हूँ, डिपेंडेंसी। मेरी डिपेंडेंसी कैसे होगी मेरे क्लाइंट की मेरे ऊपर? अगर मैं, जैसे मैंने अभी बैंक्वेट का एग्जांपल दिया था, अगर मैं आपको पैसे बना के दे दूं और पैसे में मेजर कर रहा हूं, आप मुझे छोड़ ही नहीं सकते। By the grace of God, 15 साल से one of the reasons that we are a small boutique agency working only with hotels is because 15% of our clients work with us on percentage, retainer or percentage, and that is almost 70% of our revenue. क्योंकि आप करो, किसी और की हिम्मत है तो ले जाओ। Because एक इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ के जब हम उसको रेवेन्यू के प्रॉमिस करते हैं ना, जब आपको समझ आ जाती है गेम, and you can make, when you do a revenue promise,
That's what the agencies are meant to be. See what happened was वो Ogilvy और वो सब publicists वगैरह को देख करोड़ों लोगों ने एजेंसीज खोल ली. हम भी क्रिएटिव बनाएंगे. वो क्रिएटिव 35 लाख 50 लाख 1 करोड़ का एक बैनर, एक पोस्टर, उसके पीछे 4 फॉरेनर्स को दुनिया भर से लेके आते हैं. हमारा सिंगापुर हेड है, ये पेरिस हेड है, ये हेड है. इस बंदे ने जो आपका ओ देखा ना, उसके यू देखा, यू से मुझे उसको ऐसा लगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो ऐसी है. आपको यू पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाते हैं, उस बंदे को कहानी समझ आती है. Most of us have not gone to those kind of marketing schools to be able to create those stories. I had gone for a pitch to Dubai when I lost this deal to one guy many years ago. मैं स्टोरी नहीं भूल पाता उसकी. उसने क्या किया था, वो दुबई गए थे, हम एक बहुत बड़े होटल में थे, किसी शेख का होटल था, गोल्ड प्लेटेड कॉन्फ्रेंस रूम. वी वर लाइक, ओ माय गॉड, यहाँ पता नहीं कितना बड़ा होगा. लेकिन हम पॉजिटिव एटीट्यूड से गए थे. मेरी टीम मेंबर ने बोला था, सर हम ये क्यों सोच रहे हैं कि यहाँ प्रेशर कितना होगा, ये सोचो ये डील मिल जाएगी तो पैसे कितने मिलेंगे. तो आई सेड यार गुड एटीट्यूड, तो वी वेंट. बट वी लॉस्ट द डील. हम लोग सब अर्जुन के जैसे सूट पहन के गए थे. मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच है. मुझे लगा सूट पहन के इंप्रेशन पड़ता है. हर आदमी की स्ट्रेंथ होती है. मेरी स्ट्रेंथ, अब यू नो, सम एक लड़का आया, फुल रिस्पेक्ट टू हिम, यू नो, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई पढ़ा लिखा आदमी है. पर्सनैलिटी वाइज कोई खास नंबर नहीं थे उसके. ही केम, उसने पहले सबको पिच करने दिया. उसके बाद उसने बोला सबके हाथ में पेपर रख दिया. दिस इज बहुत पुरानी बात. सबके हाथ में एक पेपर रख दिया, सबको पेन दे दी. तो नाइस, सबके नाइस होटल की पेन थी. और उसने बोला ओके नाउ गाइस टेल मी इफ योर होटल वाज अ कार, व्हिच कार वुड इट बी. सबने लिखा इफ योर होटल वाज अ कलर, व्हिच कलर वुड इट बी. इफ योर होटल वाज अ परफ्यूम, व्हिच परफ्यूम वुड इट बी. इफ योर होटल वाज अ हीरोइन, व्हिच हीरोइन वुड इट बी. ऐसे उसने 15-20 क्वेश्चन पूछे, सबने लिखे. उसके बाद से सबके पेपर्स को सामने लगा दिया पिन बोर्ड पे. और बोला ये सारे वाइस प्रेसिडेंट्स हो आप लोग सारी कंपनी के, आप सब अपने ही होटल को अलग बोलते हो. कोई फरारी बोल रहा है, कोई लैम्बोर्गिनी बोल रहा है, कोई कटरीना कैफ बोल रहा है, कोई पूजा भट्ट बोल रहा है. कर क्या रहे हो आप? पहले ये तो समझ लो कि आप सब अपने होटल को ही एक तरीके से नहीं जानते. तो पहले उसने उनको ब्रांडिंग और स्टोरी पिचिंग बेची, उसके बाद डिजिटल बेचा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज ये एक अलग टाइप की बड़ी एजेंसीज के लोग होते हैं जो ये सब कर पाते हैं. उनसे सीखना इज अमेजिंग. आई ऑलवेज टेल पीपल वर्क फॉर लार्ज एजेंसीज, try to understand how to hype up a brand. But in the absence of that, according to me, the best thing is go and understand where this person makes money from. और उसका परसेंटेज. अगर अपार्टमेंट बेच रहे हो तो क्या 0.25% कन्वर्जन है? आप लीड लेके आते हो. हाउ डू यू गेट द लीड बेटर? एक अपार्टमेंट के कौन से 4 टाइप के डेमोग्राफिक होते हैं? कौन खरीद रहा है? एनआरआई खरीद रहा है, बॉम्बे से आता हुआ बंदा बैंगलोर शिफ्ट हो रहा है. वो only work with rich people and only work with people who have clients who are rich people. ये formula हमेशा याद रखो. Your clients have to be rich and your client's client has to be rich. So if your client is a builder and the builder's client is somebody who's buying a 5 crore apartment, great. अगर आप एक बिल्डर के साथ काम कर रहे हो जो नया बिल्डर है 35-30 हजार रुपए के अपार्टमेंट बना रहा है, तो प्लीज उसको छोड़ो. So work with rich people who have rich clients. Once you do that, आपको पता लगा उसका 1% आधा % कन्वर्जन, तो उसके फनल में देखो कि आधे % को मैं 0.25% कैसे कर सकता. हाउ कैन आई ऐड 2.25 एक्स्ट्रा. क्या उसका सेल्स साइकिल टूटा हुआ है? क्या उसके एड्स इतने सारे कि 300 में से ये लीड कंफर्म हो रही है? क्या पता मैं 200 से कर दूं ऐड क्लियर करके. फिगर आउट दैट वन प्लेस दैट यू वांट टू फिक्स इन दैट होल फनल. उस चीज को अपना बना लो. एड्स में आपके ठीक करके आई विल गेट यू बेटर दिस थिंग. नाउ यू माइट से कि जब मैं ये चीज करूंगा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है. अभी आपने मुझे आज बताया नेवर डन इट. व्हाट इफ आई lose money? Tell the client, I will charge you only 5 lakh rupees retainer. But after 2 months of proving to you that I can sell you at least one apartment for 1 crore every 2 months. Challenge accepted. वो बोलेगा yes. आप भी challenge accept करो, वापस आओ, अपने ad copies को creative उस तरीके से बनाओ, lead लेके आओ, अपनी टीम से फोन उठवाओ, उसके 2 अपार्टमेंट बिकवा दो, एक अपार्टमेंट बिकवा दो अगले 2 महीने. उसका फनल ठीक कर दो, उसकी टीम को ट्रेन कर दो, जो भी जिसको हैंड्स ऑफ हो जाए. Let's stop blaming the client. आपकी तो टीम अच्छी नहीं है सर, आपका तो ये. वो कहता है भाई ये सब मुझे ऑलरेडी पता है, मेरे से नहीं होगा. आप कर सकते हो. Take ownership of that, the whole thing. That Supriya client can never leave you. So are you trying to say that we should close the sales on behalf of the client? I am saying 2 things. One is पहले तो आप उसका देखो, जब वो लीड एड चला रहा है तो गलत एड चला रहा है 100%. Yeah. So that's a huge this thing. You can show 4 types of different ads, creative ad. Okay. Then जब वो ad आ रहा है उसके बाद what is, how is CRM working, how is automation working, 100% वहाँ भी चीजें टूटी हुई. फिर आप देखो उसकी जो सेल्स कॉल जो फोन उठा रही है, उसकी 100 सेल्स कॉल 100 लोगों की सेल्स की ट्रांसक्रिप्ट मंगाओ, चैट जीपीटी में डालो और पूछो क्या गलतियां कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट निकालो. इन तीनों चीजों के बीच में देखो कि
अगर आप उसकी जगह होते, इफ यू वर द बिल्डर्स डॉटर, अगर ये आप, इफ यू वर द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग, क्या, और आपने अपना बिजनेस ज्वाइन किया होता पापा, और आपने ये फनल देख लिया होता, क्या इसमें से आपको लगता है मैं 1 करोड़ का अपार्टमेंट अपनी फैमिली के लिए और बेच सकती हूँ? अगर यस, तो टेक ओनरशिप ऑफ द होल थिंग, मैं आपको 1 करोड़ बेच सकती हूँ। जैसे ही उसका पहला अपार्टमेंट बिक जाएगा ना, आप उसके बाद जाओगे 5 लाख मंथली टेंडर, वो मना नहीं करते। I think very relevant, अभी what you are saying, मतलब when we take the ownership, client को confidence आता है. Just understanding from you, since you have scaled up, one of the challenges the agency we face is we have to look on the sales and operation, all the things. So getting the right people, how should we look at KPIs, या how should we do that one? कि जब आप client meeting कर रहे हो, expand कर रहे हो दुबई वगैरह, तो ये delivery होती रहे, क्लाइंट को उसमें चैलेंज नहीं है। डिलीवरी, एक बात बताऊं, डिलीवरी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं। परफेक्ट डिलीवरी डिफिकल्ट होती है और परफेक्ट डिलीवरी शायद होती भी नहीं है, लेकिन डिलीवरी इज नॉट अ डिफिकल्ट, ठीक है। डिलीवरी के लिए यू नीड समबडी हु लव्स टू डू डिलीवरी। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको इतना इजी आंसर दूंगा, बट ऑब्वियस और इजी, बाय द वे लाइफ में हर चीज का आंसर इज इजी एंड ऑब्वियस। हम लोग कुछ कूल नया ऐसा ढूंढ रहे होते हैं, नहीं। I call this the IPL strategy. IPL में लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारा मैच आ रहा है, मान लो साउथ अफ्रीकन टीम के साथ या चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। अब वहां हम कैलकाटा, आई एम नॉट अ क्रिकेट गाय, तो मेरा एग्जांपल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट मान लो ईडन गार्डन में हमारे मैचेस हैं और जिन टीम्स के साथ है वहाँ आउटफील्ड थोड़ी बड़ी है, वेट है, थोड़ा सा बॉलर हमको मीडियम पेसर चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या हमें ऑलराउंडर चाहिए, या हमें ओपनिंग बैट्समैन चाहिए, ठीक है। तो टीम क्या करती है, बताओ? What do they do? They look for the best. Coach करते हैं ना? Yeah, people are trained. Exactly. Trained बंदा कल को एक येलो टी शर्ट पहन के मुंबई चेन्नई के सुपर किंग्स के लिए खेल रहा है, आप उसको अगले दिन सिर्फ टी शर्ट बदलते हो, कुछ नहीं सिखाते। ये रही टी शर्ट, वहां जो छक्का मारा था ना बेटा, अब तो मेरे लिए मार, खत्म, finished. That is how you scale a business. You find somebody, your HR, not your HR, your HR, आप खुद HR करोगे इस चीज के। उसको रेस्टोरेंट में मिलो, बॉम्बे जाओ, कहीं भी जाओ, उसको खाने पे बुलाओ, find the best person, फ्लाइट पकड़ के जाओ, उसकी मम्मी पापा से मिलो, जो भी करो, find the person in who is doing in some other agency what you want, what you dream should happen in your agency. So that you don't have to teach him anything and he is 10 steps ahead of you. बॉस नहीं है हम उसके, हम एक ऐसा बंदा लेके आ रहे हैं जो आपको बताएगा सर ऐसे नहीं होता, आपने 100 क्लाइंट हैंडल नहीं करे, मैनेजर। एंड देन जो भी आपके पास लाइफ की सेविंग्स पड़ी है या जो भी एफडी पड़ी है वो तोड़ो और उसको लेके। That's how you build a team. जब वो बैठ जाएगा तो 2 दिन पार्टी करो, यस मेरे पास बंदा आ गया, 1 महीना उसको नर्चर करो, उसका ध्यान रखो, उसको सपोर्ट करो, उसके बाद एड से लाओ और फुल ऑन सेल्स में लग जाओ, क्योंकि उसके पैसे भी अब आपने देने। लेकिन ये बात आपकी अश्योरिटी है क्या, जो क्लाइंट जाता है, जिस वजह से आपको टेंशन होती है, क्लाइंट आया एक तरफ से चला गया, वो बंद कर दिया आपने, एक तरफ से तो बंद करोगे। तो there is, I promise all of you people, there is no other way out. जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं ना, you know, Arjun knows we do hundreds of these, you know, agency calls and 3-day challenges and all of that. There is no other way out. This is the most common question and there is only one way. Find somebody who's doing in another agency what you dream should happen in your agency. 8-10 लोग ढूंढो, मिलो उनसे, 2-2, 3-3 राउंड करो, इसमें 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, does not matter. तो पहला मैंने आपको बताया about the 5 lakh rupee deal. मैंने आप सबसे पूछा कितना लंबा, 5 लाख 2 लाख whatever you want, कितने ना सुनने को तैयार हो कि नहीं लोग, कितना आपको पता होना चाहिए, 1 साल में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, 6 महीने में हो जाऊंगा, ऐसे तो कोई बात नहीं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता टू बी एबल टू स्टार्ट क्रैकिंग डील्स। 2-3 महीने खराब चलेंगे, कोई बात, अपनी नीश बनाओ, अपना कस्टमर एविटार बनाओ, अपने एड्स बनाओ, स्टार्ट रोलिंग इट आउट, डू इट एंड से नो टू एवरीबॉडी एल्स। इन द मीन टाइम आल्सो स्पेंड टाइम। बट अगर हम यही छोटे छोटे क्लाइंट्स और छोटी छोटी टीम को बनाने में लगे रहेंगे तो हमारा जो है ना आत्मविश्वास है कैसे, उसकी तब तक धज्जियां उड़ जाती।
And then what starts happening is कि हमें उस चीज से नफरत होनी शुरू हो जाती है जिस चीज से हम एक दिन प्यार करते हैं, वो है हमारी खुद की एजेंसी. And that's not a good phase to be. It's happened with everybody, but that's not a good phase to be. Because if you're not in love with what you're doing, then it shows in your work, it shows to your team, और वो खराब होने लग जाती है. The third thing that I like to say to all of you people is, जिस तरीके से हम ये लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं ना, I would suggest after this call, Arjun and Supriya and Deepak and all of you people, if you've not met, you should, you know what? It's जैसे आप कह रहे हो ना, मैं कुछ बंदा ढूंढ रहा हूँ. Maybe अगर आपके पास पैसे हैं और बड़ा रिटेनर है, तो ऑपरेशन संभालने के लिए सब लोग रेडी हैं. दूसरे एजेंसी पार्टनर रेडी हो जाएंगे. Yeah. That's the best. I mean, I have supplied services to so many agencies during their festive season when we had the bandwidth, and this happens quite often. I that is why I meet with other bigger agencies so that I can get that work. Lovely, that's fantastic. You know, social media marketing world, this is one of the largest social media conferences happening in San Diego. 5,000 to 7,000 digital marketers come, and I've been going since 10 years. Boss, it's difficult to find agencies with more than 5 to 10 people. Because everybody is collaborating. कोई fixed cost रख ही नहीं रहा है कोविड के. It's amazing. मतलब $1 to $3 million की agencies per year have 5 to 10 people. Obviously, system वगैरह थोड़े से हम लोगों से ज़्यादा better follow करते हैं, base camp वगैरह जो भी है. But also the fact is that they're collaborating. But collaboration के लिए जो expertise है, एक बंदे की expertise से सेल लाने की होती है, और वो सेल बड़े पैसे लाते हो, तभी बड़ी एजेंसीज को आउटसोर्स, मतलब अच्छी एक्सपर्टीज वाली एजेंसी को आउटसोर्स करते हैं. अगर मैं रिटेलर ही 50,000 का ला तो 25,000 में तो फ्रीलांसर भी नहीं मिलेगा मुझे. फिर मुझे लगता है उससे अच्छा मैं इन हाउस ही कर, बस फिर वहीं से गाड़ी खराब. And also what Supriya is doing is a great idea to reach out to large agencies around the world. So whenever you travel for work, especially like when you are going out for a pitch, तो वहाँ पे meetings say suppose एक ही दिन की है, how do you plan to meet with other clients or agencies there? Like you have a business in Canada, you went to Dubai also for a pitch. I'm sure UK में भी आपका कुछ ना कुछ होगा. So how do you network there? I'm asking this because I am planning to visit London for 2 weeks in December, and I have spoken to a few artists there because I want to get more into lines of art direction and all of those things. So I want to know how can I do it better. Very good. So first I'll tell you, एक बात आप लोग रूल ये याद रखना, always remember in your business that what is the first path to money, first step to money. मतलब जैसे होता है ना, I love meeting people, I love talking to people, I love networking. We all love it. That's why we are creative agency people. But I'll tell you one thing, it doesn't lead to money directly. It's a relationship building part. But then there are things which are like prospect के पास proposal गया हुआ है, अगर मैं उसको मिल के आऊँगा, that is one step away from money. These things of meeting people are 2-3 steps away from money. So depending on where I am at my stage in my agency, I will create a 60 to 70% urgency on the 1 step away from money, 20% urgency on the 2 steps away from money, and then 10% on the 3 steps away from money. And that's how I would also plan my meetings. अगर कोई मुझे कहता है ना मिलना है, तो मैं सबसे मिलता हूँ. इनफैक्ट मैं सबसे ज्यादा उन लोगों से मिलता हूँ जो मेरे पास जॉब्स, जो मुझे लगता है आज कल परसों 5 साल बाद कभी ना कभी मेरे साथ जॉब कर सकते हैं या मेरे साथ कोई को-फाउंडर बन सकते हैं. तो आई एम ऑलवेज मीटिंग पीपल. पता नहीं कौन कब आ जाए, और लंबे लंबे रिश्ते चलते हैं हमारे साथ. But that is not direct money. That is indirect. So firstly, मेरा आपका जो आंसर है, I will give it in the thing कि whatever you do, whenever you plan a trip, whatever, always say first step from money, second step, 2 steps from money, and 3 steps from money. Number 1. Number 2, the thing is the best way to close clients, network with clients, to make the most of your thing is, पहले मैं क्या करता था सुप्रिया, पहले I used to always have partners and resellers in every place. UK में मेरा कोई भी काम नहीं है, but Dubai was my biggest market at one point in time. So Sahil from ResNet used to be my partner. हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे 15-20 साल पहले. ऐसे दोनों लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, तुम कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ी एजेंसीज अपनी बातें कर रही है, हमें कोई पूछ नहीं रहा था. तो हम दोनों ने आपस में बात करनी शुरू करी. रिसेंट में दुबई में आई एम अ डायमंड मर्चेंट सन, बट आई हैव ओपन्ड अ कंपनी विच डज सॉफ्टवेयर फॉर होटल्स.
So my definition in my head of a partner is always somebody who's selling a product to your client, but is not your competition. Yeah. वो भी होटल्स के पास जा रहा है, मैं भी होटल्स के पास जा रहा हूँ, कंपटीशन नहीं है. मैंने कहा भाई एक काम कर. कहता है मेरे को क्लोज करना नहीं आता. मैंने कहा मुझे क्लोज करना आता है. कहते हैं मेरे को टीम नहीं बढ़ानी. मैंने कहा मेरे पास 100 लोगों की टीम है. कहता है एक काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तो वहां आ जा. एंड आई सेड एक काम कर, एक हफ्ते की 30 मीटिंग्स रख सकते हो. दुबई में ट्रैफिक नहीं होता ना, हफ्ते की आप 30 मीटिंग्स रख सकते हो. 30 मीटिंग्स वो रखते थे सुबह शाम. यूज्ड टू गो सुबह शाम एंड वी डिड ऑसम बिजनेस. बट वो उस टाइम की बात थी. नाउ व्हाट आई वुड डू एंड what I would like to do whenever every time I travel is I'll invite the top prospective clients on a roundtable conference. Call it whatever, real estate digital conference, whatever. उनके नाम से उनको importance मिलनी चाहिए. It's not internet moguls. उनके लिए call 10, 15, 20 people. क्या होगा? Maybe it will be $50 per person. Lunch सब मिला के sandwich वगैरह in a nice place, maybe overlooking the water or something. Interview them. Make reels out of it. Because remember Supriya, branding by association is the best branding, right? आप शाहरुख खान के साथ आपकी 4 फोटोज आती है तो कहते हैं सुप्रिया शाहरुख खान काम तो नहीं करती उनकी एजेंसी, कुछ होगी बात. So it's called branding by association. So you associate yourself. तो number 1 advantage वो आता है. Second advantage ये आता है, ये सारे के सारे लोग जब आप उनसे सवाल पूछ रहे होते हो, they feel important, and then reciprocity kicks in and they ask you what do you do उस conversation में, and then we talk about जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं कि आप I do this for a client or whatever, and after that some people will want to book a time with you to call later. It's a best ROI of your thing. आपको travel भी नहीं करना, एक location है जहाँ सब लोग आएंगे, and you make this happen. Okay. In fact, you should do it every month, every city, wherever you travel. अच्छा, उसके बाद एक और है सुप्रिया, what we decided. अभी तो I used to do this. तो अभी हमने क्या किया? हमने पिछली बार जब किया when I came to India, we said let's do 3 a day. So we did 3 in 1 day. 1 10 people podcast round table. दोपहर को वो लोग, अच्छा वो सीढ़ियों पे ऊपर जा रहे हैं, उसी सीढ़ियों से लोग वापस आ रहे हैं, इतना कभी बैक. फिर शाम को एक किया. But I met 30 people. Then we did that another in Bombay, then we did that in Bangalore, then we did that in Goa. So that was second phase. कि आप उसको 3x 4x कर सकते हो एक ही दिन में. होटल तो पूरे दिन के पैसे दे रहे हो, चाहे एक लंच करो या वो करो, बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया. Now third thing which we want to do right now in January is that now when we do our round tables, this time I'm going to get it sponsored. And we're asking the sponsor only to pay 50,000 per sponsor. हमारे को हर पॉडकास्ट के सुबह होगा, एक दोपहर को, एक शाम को होगा. हर पॉडकास्ट के 2-3 स्पॉन्सर चाहिए. 2 लाख सुबह, 2 लाख शाम को, 2 लाख शाम, 6 लाख रुपए. So what will happen is, अच्छा अभी होटल्स वगैरह सब स्पॉन्सर्ड होते हैं हमारे. Why? Because we tell the hotel, these are the guests who are coming, the top people in your city. Would you like to sponsor it? Because आपके GM को भी चांस मिलेगा आने. Hotels love that idea. तो हमारे को वो फ्री मिल जाता है सारा. But अब जो ये 6 लाख रुपए का जो हमारा एम है कि स्पॉन्सर करेंगे, that will be 6 lakhs a day extra revenue for us. Because now we're going to get relevant sponsors. और स्पॉन्सर का एक ब्रांड एम्बेसडर 50,000. मान लो सुप्रिया, आपने 10 रियल एस्टेट के टॉप लोग इकट्ठे कर दिए, और एक आदमी जो रियल एस्टेट को सॉफ्टवेयर या CRM में कुछ बजाता है, उसको आप बोलो मैं तेरे को उसी राउंड टेबल पे बिठाती हूँ उसके सामने, यू कैन ऑल्सो बी देयर, 50,000, एंड देन तुम्हारी भी ब्रांडिंग हो जाएगी. ऐसे 3-4 लोग विल गेट, सुबह वाले दोपहर वाले में, रात वाले. सो इट्स अकॉर्डिंग टू मी, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका दिस इज द बेस्ट. नंबर 1, do 1 podcast round table, see how it goes. Number 2, then brand it and do 2-3 a day. You can do once in 2 months or whatever, curate it. Once you're confident about it, then call other sponsors who are not your competition but selling the same product, and then you watch. You will up. I don't like people to stop their ads, but this is the only way that आपके ads बंद हो सकते हैं, सब हो जाते हैं, because the top decision maker is doing a dinner with you, podcast with you. So when you did this for the first time, had you known the people you had invited, or was it only through cold calling? No. So it was mixed. अभी भी mixed है. अभी भी ऐसा नहीं होता कि सब लोग जानते हैं. It's always fixed. It's all. But the thing is, जब पहले 2-3 बड़े नाम जब एक बार आ जाए ना, तो then I can show that picture to them and say कि देखो इसने हाँ बोल दिया. अच्छा, एक और हम छोटा सा वो हैक यूज करते हैं. I don't think it's a wrong thing to do, but what we do is we say these are the 20 people who are invited. Yeah. Not coming. They're invited. This happens quite frequently. Yeah. So then people look at that and say, अच्छा यार हमको भी इसमें फीचर होना है इस लिस्ट में. अच्छा, हमने एक अवार्ड्स भी हमने उसके साथ में डाल दिया कि you get the award. People like awards also.
idea is to get the right people because time ही सबका सबसे मुश्किल होता है. And in fact now I want to do something जैसे वो लोग करते हैं Mashable वाले गाड़ी में. So book a nice van or something and take 8-10 people together. Just make it interesting and fun for them. Everybody wants to have fun. Right. But only the clients Supriya, Amrit, Arjun who can pay you 50 lakhs a year. कोई फायदा नहीं है. कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का. So उसी टाइप के clients के साथ घूमना है. So that we can work less, make more money and spend time with family and all of and travel. That's the basic mantra of when I call myself a family first entrepreneur. Seriously, I'm not against or for anything because against and all these things are very harsh words. I'm not against it. But ये hustle culture जो है ना, ये मुझे लगता है बेवकूफ बनाने के लिए हमारे को यूज किया जाता है. इतनी मेहनत करनी पड़ती है. नहीं, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती. कम इनफैक्ट हिम्मत ज्यादा रखो, ना ज्यादा बोलो. बड़े क्लाइंट्स के लिए तैयारी करो. हाँ जी, बहुत सही बोला सर आपने. ये हसल कल्चर ने एक्चुअल तो पूरा डिसरप्ट किया हुआ है बंदे का लाइफ एंड एवरीथिंग. हम लोग सिर्फ भाग रहे हैं टारगेट्स के पीछे एंड वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर एनीथिंग एल्स इन आवर लाइफ. यार देखो, मैं क्रिकेट नहीं देखता बट मतलब क्रिकेट मुझे आई विल नॉट लाइक एवरीबॉडी इन इंडिया प्लेड क्रिकेट. आई डिडंट प्ले क्रिकेट बट आई वॉच क्रिकेट बिकॉज़ आई लव द डिसिप्लिन ऑफ हाउ टीम्स आर मेड एंड ऑल. जब से आईपीएल आया, पहले आईपीएल से पहले हर बॉल पे 6 नहीं मारते थे टेस्ट मैच. पेशेंस, आराम से. आज आईपीएल हर बॉल पे बंदा 6 मार. कहने का मतलब ये है कि उनके दिमाग, ये जो आजकल की नई जनरेशन आ रही है उनके लिए 6 इज ओके, मतलब हम मार सकते हैं. तो हम क्यों नहीं 6 मार सकते? 6 मींस अगर हमने डिसाइड कर लिया 5 लाख का रिटेनर लेना है तो रिवर्स इंजीनियर करो कि कौन आदमी है जो मुझे, इसका मतलब 99% ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी और 1% इज मोर देन इनफ. बट हम रॉन्ग लीड्स की तरफ जाते होंगे थे, ये तो 5 देने नहीं वाला, छोड़ो यार मैं क्या करूं. सो थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा पेशेंस. तो वही करना है. गोल सामने पड़ाओ, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना. मेरे हिसाब से 8-10 क्लाइंट हो, 2 से 5 लाख रुपए महीना दे, 50 लाख रुपए की एजेंसी हो, 50% 60% प्रॉफिट हो, एक को फाउंडर एक पार्टनर हो आपके साथ चला रहा हो, 25-30 लाख रुपए महीने के आए, 3-4 करोड़ रुपए साल के. उससे ज्यादा पैसे तो बड़े बड़े सीईओ नहीं कमाते यार. तो सही. ईएमआई बनाओ अच्छी सी, 2-4 लाख महीने आपके अपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, 15 साल की ईएमआई की अपार्टमेंट बनाओ, डबल पैसे उसके दो, ताकि 7 साल में आपका अपार्टमेंट अपना हो जाए. 7 साल में वो प्रॉपर्टी भी 70-80% अप्रिशिएट हो गई होगी. फिर 3-4 साल बाद अपना ऑफिस भी दे दो. 10-15 साल में एक ऑफिस बन जाएगा, एक घर बन जाएगा, 8-10 करोड़ कैश बन जाएगा, अच्छी लाइफ हो जाएगी. क्या मतलब, व्हाट आई एम नॉट सेइंग डोंट बिकम बिलियनियर्स और व्हाटएवर, बट मुझे लगता है कि अगर ये जो बिलियनियर की जो हसल है ना जो इंडिया में आई है, लोग ये बात नहीं करते, समझते कि बिलियनियर हर चीज का एक ट्रेड ऑफ होता है. अगर आप कहते हो बिलियनियर बनना है तो कम ट्रेड ऑफ होता है. बिलियनियर बनना, भूल जाओ माँ बाप परिवार वगैरह सब भूल जाओ सब. तो जिन लोगों को, मेरे जैसे लोग जो कहते हैं मुझे तो सब कुछ चाहिए, मॉम डैड भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, घूमना भी है, ये भी, मुझे सब चाहिए. तो अगर सब कुछ चाहिए तो इतना बड़ा सपना लेके क्या, और होगा क्या? वो पैसे तो वसी में पड़े हैं. मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आपको पता नहीं है, और बताऊंगा तो फिर किसी को खुशी भी नहीं होगी, तो फिर फायदा क्या? सो ये चक्र, ये फंसा देते हैं. कौन फंसाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई कहता है माया जाल है, गीता में लिखा है, कुछ पता नहीं क्या है, बट ये फंस जाते हैं. Have you had any such experience wherein a client, say suppose has told either you or maybe early in the time your team members that marketing is something जो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई क्या बड़ी बात है, या मतलब actually traditionally अगर देखा जाए तो people who have excelled in the fields of advertising or marketing have not really come from a background of that. मुझे पता क्या, मुझे क्या लगता है सुप्रिया, मैं आपकी क्वेश्चन की गहराई को समझ रहा हूँ. मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एक मारुति लेके जाओगे किसी के पास, तो वो बोले, और आप बोलोगे 5 लाख की है, 7 लाख की है, 10 की है, तो हर बंदा यही जवाब देगा कि यार गाड़ी, ये तो गाड़ी कोई भी बना सकता है. लेकिन अगर आप एक मर्सिडीज लेके जाओगे तो हर लोग नहीं बोलेंगे. दैट मीन्स द वे वी पोजिशन आवरसेल्व्स गेट्स दिस काइंड ऑफ. अगर कोई बोल रहा है ना मेरे को कि मार्केटिंग तो कोई भी कर सकता है, पहली बात, मैंने अपने आप को उस तरीके से पोजीशन नहीं किया उसके साथ. और दूसरी बात, आई एम टॉकिंग टू द रॉन्ग पर्सन. आई हैव टू टॉक टू अ पर्सन हु इज इन एक्सट्रीम पेन, जो आईसीयू में है, पेशेंट मरने वाला, जो कुछ भी करेगा. आई डोंट हैव टू टॉक टू समबडी जिसका वो बंदा कह रहा है कोई भी कर सकता है. अच्छा, कोई भी कर सकता है तो व्हाई आर वी इवन टॉकिंग? करो फिर आप, अच्छी बात है.
मैं भी मानता हूँ सर कोई भी कर सकता है. इनफैक्ट आपको तो मेरी टीम में आके यू शुड गिव अ लेक्चर टू माय टीम, यू नो, गिव अ टॉक. आई लव टू हैव यू. आपके तो अभी विचार इतने अच्छे हैं. But the thing is, immediately I get to know this, you know, you should know this is not the right person. Yeah. Actually, I had heard this from somebody else. So, like what I responded to them was that if even if they're thinking like this, there's a reason why they are still talking to you. Exactly. तभी तो मैं कह रहा हूँ reverse psychology आप play करो ना. आप बोलो बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप. Thank you for saying that. आप I really appreciate it. बिल्कुल ठीक है. कोई भी कर सकता है. मुझे लगता है आप मार्केटिंग फील्ड से हो, क्योंकि सब कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है लेकिन आपके लिए आसान होता है. वेरी गुड सर, प्लीज कम एंड गिव अ टॉक इन माय कंपनी. उसके हथियार ही डाल दो ना. जब वो लड़ने ही नहीं चाहते तो क्या लड़ेगा? व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज सम रिबटल. खत्म कर दो उसके साइड कार्ड. Okay, so we just have a couple of minutes left. So I just wanted to, you know, go to this. What do you think is the role of when we started Internet Moguls? We used to, I made it mandatory, and we were known for it for a long time. The Internet Moguls wears only suits. You know why? Because I felt like an outsider because we work only with hotels. So I used to feel like an outsider. क्योंकि होटेलियर अगर बिना टाई वाई के जाओ ना, वो जैसे आर्मी वाले होते हैं कि सिविलियंस को अलग से देखते हैं ना, वैसे होटेलियर्स हमको अलग तरीके से देखते हैं. ऐसे नहीं यार, आई वांट देम टू फील आई एम पार्ट ऑफ देम. तो हमने एक बनाया था सूट टाई, रेड कलर का पॉकेट स्क्वायर, इंटरनेट मोगल्स का बैज. अभी भी लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे लोग आते हैं ना, अलग से पता लगता है. सो व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ, अभी लोग सीरियसली ले रहे हैं नहीं ले रहे मुझे पता नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ पावर ड्रेसिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस अ क्लाइंट? So power dressing can either make or break your first impression for a client. People generally say that, you know, क्या ही फर्क पड़ता है, what we bring to the table is far more important than how we look, but it's not really like that. You never know किसकी hypocrisy कहाँ है, कौन क्या बोल रहा है और क्या सोच रहा है. We say a lot of things, but then when it comes to belief or our conditioning of the mind, things are pretty different. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है. तो मुझे लगता है पावर ड्रेसिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. इस पढ़ रहा भी हम पे अपना. हाँ, नहीं मेरा क्या ही पढ़ा होगा सर. मेरे को इसलिए मुझे इसलिए लगता है दैट इफ पर्सनली मैं अपनी बात करूँ या मैं अपनी टीम को साथ लेके जाऊँ, जब भी मैं क्लाइंट मीटिंग में जाता हूँ ना, मेरे साथ यूजली ऐसे आई एम विदाउट माई रिंग्स, आई एम विदाउट माई कड़ा, आई एम विदाउट माई वॉच. मैं नॉर्मल ड्रेस में मतलब ऐसे ही बैठा हूँगा अगर मुझे पता होगा मैं अभी कुछ नहीं करना. पर मुझे जब भी क्लाइंट से मिलने जाना होता है ना, मुझे ये पता होता है दैट he is coming from that background. If he's in the field of hospitality, or he's an event planner, और I know कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है जहाँ पे शोशाबाजी बहुत है. लाइक बैंक्वेट ओनर्स हो गए या फिर किस तरीके की इंडस्ट्री को वो बिलोंग करता है. अगर मुझे पता है if I'm going to meet a स्किन केयर ब्रांड, न्यू स्टार्टअप स्किन केयर ब्रांड और ओल्ड स्किन केयर ब्रांड, तो ओल्ड स्किन केयर ब्रांड के ऑलरेडी कोई मार्केटिंग हेड्स होंगे और मार्केटिंग हेड्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से आया. बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू मीट, एंड हर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एक पीछे कॉल टेकर होता है जो जिसका माइंडसेट वैसा ही होता है. तो जब हम उनके पास जाते हैं, मैं एक अच्छी बड़ी गाड़ी में जाऊंगा, मैं एक अच्छे सूट पहन के जाऊंगा, मैं अपनी रिंग्स पहन के जाऊंगा, मैं अपने वॉचेस अच्छी पहन के जाऊंगा, ताकि उसको ये फील हो दैट ही इज कमिंग फ्रॉम द सेम माइंड जो कि मेरा है. कहीं उनको ये ना लगे कि यार ये ना इतना हल्के में लेता है, थोड़ा हल्के में लेता है ये, इसको ना शायद से समझ ना, बात बताओ कि ये शोशाबाजी वाली चीज समझ ना पाए हमारी. वेरी स्मार्ट कि वो ये बात ही ना समझ पाए. दैट्स अ गुड पॉइंट. मैं एक और चीज मैं क्या सोचता हूँ कि व्हेन यू रियली लव समबडी और यू हैव अट्रैक्टेड टू समबडी, यू गो योर फर्स्ट डेट और व्हाटएवर, देन डू वी नॉट ड्रेस आवर बेस्ट? या अगर हम शादी पे जाते हैं, कजन्स आएंगे, फैमिली आएगी, सब लोग आएंगे, विल वी नॉट ड्रेस आवर बेस्ट? यार देखो, मम्मी को भी तैयार करेंगे, पापा, सब लोग यार तैयार होकर चलो, हमारी फैमिली अच्छी दिखनी चाहिए सबके. तो क्या रिश्ता ही है ना, रिश्तेदारी में अच्छा दिखना है, तो रिश्ते बनाए अच्छा. तो इससे बड़ा ये भी तो उतना ही बड़ा रिश्ता है.
इनके साथ तो 10 घंटे लगाते हो दिन में, घर तो फिर कम जाते हो। तो ये रिश्ते एंड पीपल जज, इट्स अ गुड वर्ड, इट्स नॉट अ बैड वर्ड। आप हमें जज करते हो, सारी दुनिया जज करती है, हम भी जज कर रहे हैं उसको जो हमें जज कर रहा है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? तो अगर कोई जज कर रहा है, वाओ नाइस सूट, और मैंने आपको कितनी बार बोला अर्जुन आपके बैकग्राउंड के बारे में उस टाइम, ये वेरी नाइस प्रोफेशनल बैकग्राउंड, यू नो, अच्छा यार, अच्छा ऑफिस है अर्जुन, ठीक है, लुक्स लाइक ही सीरियसली वर्किंग ऑन द बिजनेस, पता लग, हम सब करते हैं, ये तो बहुत सिंपल बात है, सूट ही तो लेनी है। फिर व्हाट आई सूट मींस योर पावर। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, when during COVID what happened was, honestly I'll be very honest, मैंने कभी बोला नहीं सोशल मीडिया पे, बट कोविड के टाइम I put on a lot of weight, तो मेरे वो सूट फिट आने बंद हो गए, तो मैं हुडीज में आ गया, और उसके बाद मैंने बाद में हुडीज ही पहन के अपने वीडियोस बनाए बहुत सारे, एंड आई रियलाइज दैट माय होटेलियर्स, यू नो व्हाट द होटल इंडस्ट्री ने क्या बोला, बिकॉज एवरीबडी इन द होटल इंडस्ट्री नोज मी, मैंने 15 साल और कुछ किया ही नहीं, कि इसका फोकस होटल से चला गया, अभी पर्सनल ब्रांडिंग और माइक्रो वीडियो सिखाता है, अरे एजेंसी तो वहीं की वहीं है, कहीं नहीं गई, बट द होल परसेप्शन चेंज्ड। You see now I'm back to my suits. It makes a difference. It has made a difference every time I. Doesn't matter. हम लोग शाहरुख खान नहीं है कि कुछ भी पहन सकते हैं. हमें जज किया जाता है, हमें देखा जाता है, और हम उसी तरीके से you know TFG taken for granted होता है ना, चलो शादी को 5 साल हो गए, आप कुछ भी पहन सकते हो, शुरू में डेटिंग टाइम पे आप वो पहनते थे, वैसे हम अपने क्लाइंट्स के साथ नहीं कर सकते, अरे यार अब तो हम इंडस्ट्री में पुराने हो गए, नो, टेकन फॉर ग्रांटेड किया क्लाइंट को, क्लाइंट आउट हो गया, उसे लिखना चाहिए यार ये हमेशा वो है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड, आई एम सेइंग जस्ट द वे द पर्सन ड्रेसेस अप, इट शोज दैट ही केयर्स, ही और शी केयर्स अबाउट देमसेल्व्स। ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली हम जज करते हैं। The energy of that speaks for itself. 100%, 100%। हम लोग जो करते हैं उससे बेटर, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग किस तरीके से कुछ कर रहे हैं। Lovely. You know, आपने बिल्कुल ठीक बोला, मुझे उससे याद आया, see every time I get on a call, I always have my cologne with me. अब आप लोग तो मेरे साथ बैठे नहीं हो, but why am I putting on this cologne? I always put on a cologne before I get on the call. It's for me to feel good. Only then that energy goes out, right? It's for me to feel good. और ये एजेंसी वर्ल्ड में the best part ये है कि जो भी आप लोग बातें बता रहे हो या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 95% people are not going to do it. So success, I don't think is difficult. It is just consistently doing what you find difficult to do. Die wire यार, भाई उसको अच्छी लग रही है ना, खत्म, काम कर रहे। This one, you know, a founder should always be, हम जैसे फाउंडर बनते हैं ना, हमारा फ्रीडम, हमारी डिसिप्लिन, हमारा स्ट्रक्चर चले जाता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। No, founder has to be more disciplined. More discipline. Last thing I'd like to say, and then we'll, you know, one parting comment from all of you people. Last thing I'd like to say is that कभी भी अगर आपको लगे ना कि you're feeling overwhelmed, broken, रोना आ रहा है, तो पहली बात तो ये याद रखना कि सब लोग रोते हैं behind those doors, because life ऐसी है, एक साथ 4 तरफ से बॉल आती है कभी-कभी, और बाउंसर लगता है, और यार शिट क्या होगा। तो मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे को हेल्प करती है। Many years ago, about 10 years ago, my father-in-law told me कि कभी भी कोई emotional decision होना, fire this person, fire that client, मैं नहीं करूँगा, या emotional could also be something very good, कुछ ज़्यादा ही दे दो किसी को, या help कर दो, कुछ भी, हाँ तो ले ले भाई, पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी emotional आपका outburst हो रहा है, good bad, उसको 24 hours के बाद करते हैं। तो that completely changed my life. 24 घंटे के अंदर आपका माइंड प्रैक्टिकलिटी, अभी जो पूरा हार्ट हो रहा है, वो हार्ट और माइंड के बैलेंस तक पहुंच जाता है, नंबर 1। अब नाउ आई एम गोइंग टू बी 50, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज माय पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्डर, माय चिल्ड्रन आर ग्रोइंग ओल्डर, माय रिस्पांसिबिलिटीज आर ग्रोइंग, सब कुछ बढ़ रहा है, राइट? ये पावर ड्रेसिंग का सुन के इन्होंने किया है। सो ऑल दीज रिस्पांसिबिलिटीज आर ग्रोइंग, राइट? सो अभी क्या होता है, समटाइम्स लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट day before yesterday we were having a 3-day challenge. Now 3-day challenges I'm doing from here, रात को 2 बज रहे होते हैं काम करते हुए, so you're tired, and then while the webinar is happening, somebody broke into my neighbor's fence, मेरा और हमारे यहाँ, हमें लगा चोर आ गए, कमोशन हो रहा है इधर बहुत ज्यादा, and then I could not find my daughter's car got lost. Long story. What I'm trying to say is life में एक साथ चीजें आती है कभी-कभी। So the new mantra that I've learned is, एक हफ्ते तक don't react.
Which means don't try to judge यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में यार, कुछ नहीं, एक हफ्ते तक रुको, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा. And the third thing which I would like to tell you is, please always talk to people who are from the same industry but 10 steps ahead of you. Because you cannot go to another doctor. हर डॉक्टर नहीं होता. सर में दर्द हो रही है, हम क्या तू डॉक्टर है भाई, मेरी बात सुन, नहीं उसको समझ आने वाली. Talk to, जैसे Supriya Singh, she talks to big agency founders. Talk to agency founders who understand your pain, where it's coming from, and they're 10 steps ahead of you. So what I've realized is, I've got a business coach over here. He has run international businesses, staying in Canada. He runs businesses in different parts of the world. उसको जो क्रॉस टाइमिंग, जैसे मैं यहाँ रात होती है इंडिया में, देखो जो मुझे डिफिकल्टीज आती है वो उसको आती है. कोई इंडिया का कोच ये वाली बात नहीं समझ पाएगा मेरी, कि मुझे रात को जाके दिन में काम करना है, मुझे सुबह 4 बजे उठ के काम करना है. मेरा डिफरेंट चैलेंज है. आई एम नॉट सिटिंग देयर टू मोटिवेट माई टीम एवरी डे. I don't go to office physically more than 12 times a year. ये वाले challenges के लिए मैंने coach ढूंढा, and he helps me. So find whenever anything in life, health, wealth, relationships, spirituality, whatever, try to find somebody who is 10 steps ahead of you and is there where you want to be after a few years and is coming from the same challenges as you. It's beautiful. Life becomes beautiful. So before we end today's session, thank you very much. Firstly, I enjoyed it. Thank you very much. Reminds me of college days जब मैं सबको बुला के कहता था चलो बातें करते हैं. No agenda talk. But thank you for joining me in the bitching session. I think that was one of my favorite parts. So just any parting thought, because we're going to upload it on YouTube and a lot of other agency founders are going to be looking at it. So what would be your one piece of advice for agency founders? Number one, and finish it by saying why other people should join this agency series, live series next time. So you're also doing a little bit of marketing. I'd like to go first. Yeah, love it. Go for it. So I think the one thing that I would like to share with all the agency founders is that we really need to dissociate ourselves from the roles that we play. We are a founder here, but not at home. We might be a daughter at home, but not at a client's office. No. Right. And we need to take our decisions also in a dissociated manner. So this is what I am trying to learn. As if, for example, say suppose कुछ गड़बड़ होती है यहाँ पे ऑफिस में, कुछ हो गया या something mishap kind of a thing happened, and we have an emotional outburst for that. We don't need to look at ourselves in the situation right then. We just need to give macro view of it from the top and react as if this has already happened with us before. So why do I boil my blood right now for absolutely no reason, which can automatically be taken care of itself? Lovely. Love it. Perfect. And now if you could just market this series, agency live series. So I think if we are getting such kind of a platform wherein we can talk to a lot of people from our genre of work, wherein people are coming from different aspects of life, businesses, the struggles that they are coming with, unknowingly, subconsciously, we learn a lot. ऐसा नहीं है कि the things that I mentioned about, or say suppose some other person mentioned about, was not a part of my life, or maybe even the things that we had to ask, we did not ask or could not ask. But somehow or the other, it keeps on revolving in the conversation, and later, after say suppose 3 to 4 days, we realize that no, we had spoken about this. Right. So we should never leave any opportunity to be in such rooms. So what was that one thing that stuck with you today, or you got validated? It was when you mentioned about branding by association, that everything is not pure play sales, but we keep informing our room about what we are doing by associating with different people and letting them know that we have such associations. Lovely, awesome. Amrit, आपकी बारी. सर सबसे बढ़िया चीज जो आज सीखने मिली है वो है
लो बॉल क्लाइंट्स के पीछे मत अपना टाइम वेस्ट करो. आप थोड़ा खुद को स्केल अप करो. गो फॉर अ बिगर टिकट साइज. इंटरेक्ट विद पीपल हु आर वर्किंग विद बिगर टिकट साइज. उनसे आपको ये पता लगेगा कि हमको ये लेवल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा. एंड पोच करो बंदे. टू बी वेरी क्लियर कि किसी से ये सीखना है कि आपने ये इतनी बड़ी एजेंसी कैसे बनाई है. उन बंदों से सीखो. हायर देम एंड टेक योर कंपनी अहेड. So this is the best learning I got from today. Perfect. Lovely. Nidadri, I like your shirt. Over to you. Yes, I'm so sorry. I was not there for some time, but yes, one thing, honestly, one thing which I always have felt over the past few years is that somebody told me this, long back is, it's lonely at the top, right? So when when you're leading an agency, you start feeling कि यार सब लोग तो यार अपने zones में हैं. मैं किससे बात करूँ? And this forum, honestly, when I started the interaction, I was not knowing कि हम लोग क्या discuss करने वाले. I was totally blank. I told you that I came completely blank. Yeah. But when we started interacting, I realized that it's not me who is facing the same problem day in and day out. Well, everybody's sharing the same pain, but probably nobody's sharing that part. So I think this kind of interactive forum helps us to release our frustrations. जो आपने बोला नहीं, this is one of the best part of the session was the bitching session. कि हम सब ने बोला सब चीजें. Yes, हम सब ने सब चीजें शेयर किया. किससे बात करूं? किससे बात करें हम लोग? वही मेरा पॉइंट वही है कि मैं किससे बात करूं. मैं किसको जाके बोलूं कि यार बॉस ये प्रॉब्लम हो रहा है. आई हैव मतलब अगले मंथ का पे आउट है एंड अभी तक कैश फ्लोज का इश्यूज है. मतलब we can't discuss this, right? And I'm sure everybody. तो इसका नाम चेंज कर दें फिर. इसका नाम एजेंसी थेरेपी कर दें फिर. So I think वो एक part है, honestly sir, कि मतलब we all have gone through this, but probably nobody shares this because we always we feel that मैं share करूँगा तो I will look weaker. But I think there should be these kind of forums wherein we get to talk out our heart out, and probably we can learn from each other a lot can be learned from each other. Awesome. Perfect. Very well said. Thank you so much. Yes, Mr. Uppal. Yes, sir. So, sir, firstly, अब ऐसे आओगे तो मिस्टर ऊपर ही निकलेगा मुंह से. नहीं ऐसे तो. It's your power dressing which is talking. Yes. So, firstly, ये समझना कि प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, एंड सिर्फ हमारे साथ नहीं सबके साथ ये प्रॉब्लम होना, एंड देन उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना कि ऐसे लोगों से टैकल कैसे करना है. कि ऐसे लोगों से टैकल करके हमने कैसे उनको या तो ऑनबोर्ड लेके आना है या तो वी डोंट नीड देम एज अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. ये समझना बहुत ज़रूरी है. एंड थर्डली ये समझना कि अगर व्हाट यू आर वर्थ, आप 5 लाख की टिकट के वर्थ इट हो तो आप 5 लाख ही चार्ज करो, बट आप श्योरिटीज दो. अगर आप ऐसा क्लोज करना चाहते हो तो आप श्योरिटीज के साथ क्लोज करो. हाँ, नहीं होगा तो पैसे वापस कर देना. क्या हो गया? दूसरे से सीख लोगे, तीसरे से सीख लोगे, जल्दी क्या है? बिल्कुल. बट जब सीखोगे तो सिर्फ बड़े रन लगेंगे. I'll tell you one thing that from my childhood I had a bit of an impatience. एक पहले पापा को प्रूव करना था. ये लाइफ हमारी निकल जाती है कोई ना कोई अपनी खुद की इनसिक्योरिटी को फुल करने में. But anyway, so I went to Delhi's Bhagat Singh College. It's supposed to be a decent college for commerce and everything, but you don't get. It's not IIT. It's not. So every week I used to go to Hindu and Hansraj. वहाँ मैंने फ्रेंड्स बना लिए थे. मैं वहाँ घूमता था. मेरे में अंदर I didn't have a low self-esteem, but I knew that those people are going to go abroad. और मुझे उनके साथ घूमना है क्योंकि वो बाहर के एग्जाम्स दे रहे हैं पढ़ने वाले. मेरे आसपास के जो लोग थे वो यही काम करना चाहते. That was number one. Then when I was about 19-20 years old, Delhi had the best nightclub. It was called Ghungru. I took a membership for 30,000 rupees. Long story, वो पैसे कहाँ से arrange हुए, but I met. There were about 400-500 people who used to come there. It was the number one club in the country. I met the top people of the country, and today on my best friends are all billionaires before I got into business. उस टाइम तो बिलियनर मिलियनर को सोचते नहीं थे. दोस्त हैं जो रात को पार्टी कर रहे हैं, जिनके साथ सुबह 4 बजे आ रहे हैं. So that was just an innate desire of me to surround myself with people जो मेरे को अच्छे कपड़े पहनने पे, फिटनेस रखने में मजबूर करेंगे. Because when you go to these kind of places, अच्छा मैं आपको पहले खत्म करता हूँ स्टोरी. Then recently I joined Quorum Club. आप लोगों ने Quorum के बारे में सुना होगा. Then I joined Soho Club. Then I joined Bay Club.
I joined all. उससे पहले मैंने DLF club join किया था, फिर मैंने golf नहीं खेला मैंने. But why do I continuously join these clubs is because when you join these clubs, where there are entrepreneurs who are 10, 20, 30, 100 times bigger, better than you, it's about you will always be forced to dress better. You'll always be forced to look better. You're always forced to think better. आप उनके साथ बैठ के ना, they don't crib. Billionaires don't crib. Golf खेलते हो, रोते नहीं है. They solution ढूंढ रहे होते हैं, बातें कर रहे हैं. तो मेरे को ये पता है कि यार अपने आप को बदलने में अपने माइंड से लड़ना है ना बड़ा मुश्किल है. अकेले बैठ के, जैसे आपने अर्जुन आपको बोला ये नहीं करना, मुझे छोटे क्लाइंट नहीं, मुझे अपने आप को समझाना है. अपने आप को समझाना बड़ा मुश्किल है. अपनी संगत उठा के ऐसे लोगों के साथ डाल दो जहाँ लोग सोचते ही डिफरेंट है, आप अपने आप बदल जाओ. So you have to all, this is the kind of company we're trying to build with these kind of micro communities. Find places जहाँ बोले नहीं यार हम तो ऐसी बातें. So I interrupted you in the middle, but I just wanted to say find places where अच्छा इन सिचुएशन में जाना अनकंफर्टेबल होता है. यू नो व्हाई? बिकॉज उनकी घड़ी आपसे 50 गुना महंगी होगी, वो आपसे महंगा लंच कर रहे होंगे, वो बोलेंगे यार लंदन चल रहे हो परसों 2 दिन के लिए. वो यार परसों 2 दिन के लिए. दे विल चैलेंज यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. वहां से भागने का मन करेगा, दिल नहीं करेगा ऐसी जगह में जाने का. यार जाऊंगा दिवाली के उसके घर तो 15,000 का तो गिफ्ट ले जाना पड़ेगा यार, ऐसे फ्रेंड्स के साथ घूमूंगा तो. बट अगर वहां टिक गए ना, ऐसे सर्कल्स में अगर टिक गए ना, तो पैराशूट की जैसे ऊपर निकल जाओ, क्योंकि वो तो जा ही नहीं ऊपर. Yes, Deepak, over to you. Thanks, Avi. मतलब it was a good learning session, and today what I learned was a most important thing was हम लोग अपने आप को ना, हम लोग क्या किए हैं उसको हीरो समझते हैं, बट आप जिनसे मिल रहे हो उनके लिए आप हीरो कैसे बन सकते हो, वो बातें हमें करनी है. 100%. Thank you so much for saying that. मे बी मैं जब आपसे मिलूं अभी से, तो आई कैन से कि आई हैव 400 पर्सनल रीसेलर्स इन इंडिया जो एड एजेंसीज है, एंड आई हैव 1 लाख डेटाबेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. हम लोग ना हर महीने हर सिटी में ना मीटअप करते हैं, 50-100 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को बुलाते हैं एंड पर्सनल टॉक करते हैं अभी. सो मे बी समटाइम मैं जब आपकी सिटी में करूं, आई विल चेक विद यू इफ यू वुड लाइक टू कम एंड एक्सपीरियंस दैट वन. लवली. ये हुई ना बात. अब मेरे को एकदम से लग रहा है, यू नो, एजेंसी फाउंडर, दैट इज माय, सी दैट्स इट, यू गॉट इट, दैट्स इट. इससे पहले आपने बोला मेरे पर लाख लोग हैं, कोई मैंने तो आपसे इसके बाद, लेकिन अब डेफिनेटली मी एंड माय टीम आर गोइंग टू गेट इन टच. सो दैट्स इट. You personalize the thing for what the other person is looking for. That's it. Finished. Game over. And the right leads will come to you. And query form में जरूर लिखना. What was the last thing that did not work with you? What were the 3 things that did not work with your agency? What are the 2 expectations that you have from us? What's the minimum you were willing to spend? 2 lakhs को minimum डालना. उसके नीचे drop down होना ही नहीं चाहिए. If for some reason you're not able to spend this amount of money for your business, we totally understand. We will not be the right agency for you. This Zoom call will not be booked on our calendar. मना करके तो देखो क्या मजा आता है. You won't believe. Okay. अभी 2 things. Yeah. What you are saying ना, हमने अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट किया था 4-5 years पहले कि जो क्लाइंट 10 लाख रुपया मंथली स्पेंड नहीं कर रहा है, आई पर्सनली विल नॉट मीट, वरना वो सारे क्लाइंट होते थे. आई थिंक for the other founders it helped me a lot in my business कि जो 10 लाख स्पेंड नहीं कर रहा है, मैं पर्सनली इन्वॉल्व ही नहीं होता वहाँ पे. so that has worked very well. One thing I would just request you, because lot of time ना हम लोग जब एजेंसी चलाते हैं तो हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाने में भी बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कोई SaaS प्रोडक्ट या समथिंग. आई डोंट नो इफ दैट कैन बी कवर्ड इन टुडे और सम अदर डे, क्योंकि वो बहुत सारे फाउंडर्स ना स्टक हो जाते हैं कि उन्होंने ERP बना लिया या सम प्रोडक्ट और उस पर बर्न करते जाते हैं. सो वी सजेस्ट कि वो अलग बिजनेस है, but I would love to learn from you today or some other day. I'll take 2 minutes to tell you on this. So I've met a lot of people from, like, I've met Gary Vaynerchuk from Vayner Media Office and Harshil from Shabak. मैंने ये वाले सवाल मैंने बहुत सारे बड़े एजेंसी फाउंडर से भी पूछे. मैंने I'll tell you, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, आज की डेट में स्पेशली विद जोहो ने क्रिएटर अपना निकाल दिया, सब लोग बना लेंगे सारे टूल्स जो हम बना के बड़ा समझते थे, वो खत्म हो गया. टाइम टूल आप वो बनाओ जो आपकी स्टिकीनेस बढ़ाए. क्लाइंट को तो सारे टूल्स, एआई का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि इतना कंफ्यूजिंग कर दिया है कि क्लाइंट को ये नहीं पता कौन सा टूल यूज करूं, कब करूं, कितना करूं. अब तो हमारी वैल्यू और बढ़ गई है कि भाई करूं क्या इसका. पहले 6 महीने उनको लग रहा था हम लोग चले जाएंगे, अब वो लोग संभालेंगे. अब वो पागल हो गए कि करेंगे कैसे, इतना कुछ हो रहा है.
So SaaS का tool मेरे हिसाब से, according to me, a SaaS tool is a good idea only if it increases the stickiness of your agency. It's definitely a separate business, but separate business के लिए हमारे पास cash flow नहीं होता, इसलिए वो ना वो वाला मार्केट हो पाता ठीक तरीके से, और यहाँ एजेंसी में से भी टाइम निकल जाता है और अपनी टीम देख लेते हैं सर कर क्या रहे हैं, ये वाला काम छोड़ के उसमें लगते हैं. तो उसको तब करो जब आपके पास 25-30 लाख रुपए अलग पड़े और एक अलग मार्केटिंग टीम हो, अलग बिजनेस डेवलपमेंट टीम हो, उसको कंप्लीटली सेपरेट रखो. बट अगर आपने अभी फिर भी बनाना है तो अभी तब बनाओ अगर आपकी एजेंसी की स्टिकीनेस बढ़ती है. अलग बिजनेस बना के उसको प्रमोट मत करो, सिर्फ जो आपके क्लाइंट आ रहे हैं उनको रेलेवेंट को पढ़ाने के लिए. Okay, so guys, let's take a group selfie. We call everybody else as well who is here on Zoom. Manmeet and Abhishek and anybody who's here. Okay, so 5, I'll tell the team to take a picture. 5, 4, 3, 2, and 1. Awesome. Thank you guys for joining us on this series. अब मुझे लग रहा है कि इसका नाम शायद एजेंसी थेरेपी और वो इसका जो मिडिल वाला सेक्शन है, I'm saying it so that the editor can hear me. जो मिडिल वाला सेक्शन है, bitching allowed, ऐसे करके we'll make it fun. And look forward to seeing you in the upcoming session. We're going to make this a continuous series. And somewhere in January, we are opening our own podcast studio in Goa. We're going to be inviting agency founders just to have fun. So stay tuned for emails coming from us. And yeah, thank you once again for your time on a busy weekday. I hope you had fun. I had a lot of fun. Thank you and good night. Thanks a lot, Avi. Bye. Good day, sir. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, everyone.